Okay, hello all. Hope all of you can hear me. I hope I'm audible to all of you. I hope you can all see me. Great. Thank you so much. Thank you. Okay, so this is the first class of this program. I'm thankful to JudiSure for having invited me. They've been very kind to me and sweet to me since the time JudiSure started about 2 years ago. Uh, I I've taught a lot of subjects, along with my day job, which is, being a judge. I am Asad, for those who do not know me. My full name is Muhammad Asadullah Sharif, or you can just call me Asad, ASAD. I'm a judge here in Telangana Judiciary. I graduated from Nalsar University of Law in the year 2015. I gave my CLAT in the year 2010. I graduated in 2015. After some experience with UPSC examinations and some all that. I finally, uh, yeah, and then I gave my judiciary exam in 2020. COVID sort of, was a blessing for me because I could sit at home and then, think of what to do. Yes, Kushi is asking me in the chat whether I taught at CLAT Possible in Kanpur. I was the president of CLAT Possible for a few months. Yes. Okay. So Lucknow, Delhi, Chandigarh is where I used to teach. I did visit Kanpur also and other cities. Now, and then I took my exam in 2020, um, and I got a rank of 3 here in the state. We got the batch was of 66 students, 66 candidates were selected, and my rank was 3. And I joined in Telangana Judiciary. I'm working as a civil judge, junior division, as well as the judicial magistrate of first class. Okay, so that's my introduction. And JudiSure is an initiative that is started by Professor Faizan Mustafa, who was our vice chancellor for at Nalsar, and some of my seniors collectively have started it since they thought that I'm a judge, and uh, they have asked me constantly to take procedural laws. So I've taught CRPC, CPC, evidence for almost every batch. I sometimes teach constitution as well, and other subjects like contracts and transfer of property too. So today's class is going to be on CRPC. The plan is that I'm going to take 2 classes on CRPC today and tomorrow. We'll look at some important topics. We'll look at, few important things, in CRPC. I'll first explain the CRPC procedure in the sense the trial procedure, कि कैसे चलता है ट्रायल प्रोसीजर, वो सब उसकी बात हम करेंगे. और उसके बाद कुछ ऐसे टॉपिक्स पे हम फोकस करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे सीआरपीसी हो सकता है कि आप लोगों को कुछ लोगों को लगता हो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट है, बट आप ये याद रखेंगे प्रोसीजरल लॉस में हमेशा ये होता है कि सीआरपीसी और सीपीसी दोनों प्रोसीजरल लॉस दे आर वेरबोस। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा यू विल हैव टू राइट द आंसर्स आर स्लाइटली लेंदी, इवन द बेयर एक्ट्स आर लेंदी। ऑफ कोर्स सीपीसी happens to be a very long बेयर एक्ट बाय itself. लेकिन एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लें तो इट्स मच इजियर देन सब्सटैंटिव लॉस। सब्सटैंटिव लॉ की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा आपको ये प्रोसीजर लॉस इजी लगेंगी। एक तो लॉजिकल आपको बहुत ज्यादा लगेंगी, और दूसरा एक बार कॉन्सेप्ट्स आ जाएं तो उसमें लिखना बहुत आसान होगा। इतने ज्यादा टेक्निकल वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको लेट मी शेयर द पीपीटी अलोंग विद इट, और ये पीपीटी आप सबको मिलेगा। आपको कोई यू डोंट हैव टू दिस थिंग नोट्स अगर आप बनाना चाहें बिल्कुल बनाएं, लेकिन ये पीपीटी एज अ पीडीएफ मैं आपको शेयर करने के लिए तैयार हूँ। मे बी आई पुट इट अप, आई जस्ट गिव दिस टू जुडिशर पीपल, दे पोस्ट इट ऑन सम ग्रुप इफ पॉसिबल। ओके, तो देखिए सीआरपीसी में प्रोसीजर एक बार समझ लेते हैं। मैं आपको मोटा मोटा प्रोसीजर बता रहा हूँ, उसके बाद हम कुछ टॉपिक्स करेंगे। देन आई विल ऑल्सो डिस्कस सम केस लॉस जो इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अभी क्योंकि दिल्ली जुडिशरी भी होने वाला है और महाराष्ट्र जुडिशरी का भी प्रीलिम्स, आई गेस इट्स डे आफ्टर टुमारो इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो हैं तो इट विल एटलीस्ट रिमेन फ्रेश इन योर मेमोरी तब तक।
तो विल लुक एट सम केस लॉस ऑल्सो, और मैं डायरेक्टली केस के टेक्स्ट से ही आपको बताऊंगा कि कौन से केस में क्या कहा गया था, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और साथ ही साथ हम कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी देखेंगे, तो मैं आपको एक एफआईआर भी दिखाऊंगा, चार्जशीट भी दिखाऊंगा, और छोटे छोटे नोटिस कैसे होते हैं, वारंट कैसा होता है, वो सब भी मैं आई शो देम ऑन द स्क्रीन। ओके, तो फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रोसीजर ऑफ अ क्रिमिनल ट्रायल, कि क्रिमिनल प्रोसीजर का क्या प्रोसेस का क्या क्रोनोलॉजी होती है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले इफ देर इज एन ऑफेंस दैट हैज हैपेंड, ओके, इफ देर इज एन ऑफेंस दैट हैज हैपेंड, कोई अगर ऑफेंस हुआ है, तो सबसे पहले क्या होगा? आप देखिए, अगर आपने कोई ऑफेंस को देखा है, आप सड़क पे जा रहे थे, यू हैव सीन देयर इज एन ऑफेंस, कोई एक इंसान दूसरे को मार रहा था, पीट रहा था, कुछ भी, या एक इंसान ने दूसरे का कत्ल कर दिया, वन पर्सन हैज कमिटेड द मर्डर ऑफ अनदर पर्सन। ओके, सो व्हाट यू नो विल यू डू? यू विल टेल द पुलिस, ठीक है। अब आप बताएं पुलिस को, कोई और बताए, जैसे भी हो, एक पुलिस के पास रिपोर्ट चली जाएगी। तो द स्टार्ट ऑफ क्रिमिनल एंटायर प्रोसेस स्टार्टिंग विद द रिपोर्ट लॉन्च्ड विद द पुलिस, ठीक है, इसको हम रिपोर्ट कहेंगे। देखिए, वी आर लॉयर्स, आई एम गेसिंग ऑल ऑफ यू आर इधर लॉयर्स या लॉ स्टूडेंट्स, ओके, एंड नॉट लेमैन, एंड वी आर गोइंग टू बी जजेस, राइट? आप सब जज बनना चाह रहे हैं, तो देखिए, टर्म्स ना बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें। हम ये नहीं कहेंगे कि पुलिस के पास कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए, ये हम नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि कंप्लेंट का डेफिनेशन जो है सीआरपीसी में, ये स्पेसिफिकली सिर्फ उसके लिए यूज किया जाता है जो आप एक मैजिस्ट्रेट के सामने फाइल करते हैं, ठीक है। कंप्लेंट का डेफिनेशन सीआरपीसी में सिर्फ उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है जो आप मैजिस्ट्रेट के सामने फाइल करते हैं। अदरवाइज पुलिस के सामने जो है रिपोर्ट लॉन्च होती है, तो अगर हम हिंदी में भी बोल रहे हैं तो हम कहेंगे रिपोर्ट दर्ज की जा रही है पुलिस के सामने। कंप्लेंट का वर्ड पुलिस के सामने हम यूज नहीं करते, ठीक है। तो आपने अगर पुलिस को इत्तला दी, यू हैव इन्फॉर्म्ड द पुलिस दैट्स लुक, अ क्राइम हैज हैपेंड, आई हैव सीन दैट क्राइम, मैंने देखा है, एक क्राइम हुआ है, दैट इज द रिपोर्ट। ओके, now the police will have to take that report and they will register something called FIR, first information report। देखिए, नाम में यू, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इट मींस, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। वो रिपोर्ट कब बन रही है? जब सबसे पहले उनको इंफॉर्मेशन मिल रहा हो, तब जाके उनको वो रिपोर्ट मिल रही है, वो रिपोर्ट बन रही है। सो लेट्स से you are walking on the road and you have seen a murder, one person came and he took a knife and he stabbed the other person, उसने छुरा लेके भोंक दिया, ठीक है। Now यू विल ऑब्वियसली टेल द पुलिस, आपने 100 पे डायल किया, पुलिस को कॉल करके बता दिया कि देखो ये सड़क पे ये गली है और ये एरिया है, यहाँ पर आई हैव सीन दिस हैपन। आपको जितना इन्फॉर्मेशन पता है उतना बोल दिया कि यू नो वन रेड शर्ट पर्सन, चलो सॉरी, वन ब्लैक शर्ट पर्सन हैज यू नो कॉल्ड, हैज कमिटेड मर्डर ऑफ वन वाइट शर्ट पर्सन, ऐसा समथिंग समथिंग, आपको जितना इन्फॉर्मेशन है आपने बता दिया। अब कई लोग और लोग भी होंगे जिन्होंने इस चीज को देखा है, वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंच गए कुछ देर बाद, और वहां जाके पुलिस स्टेशन में फिर यही चीज कह रहे हैं। तो 5-6 लोगों ने आके एक ही इंस्टेंस के बारे में पुलिस को बताया। अब पुलिस क्या करती है? पुलिस वहां उस जगह पर जाती है और देखती है कि अच्छा, मर्डर कहाँ हुआ, ओके, यहाँ पर हुआ है, ठीक है। एंड देन व्हाट दे डू इज दे लुक एट द बॉडी एंड दे से ओके फाइन, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजना चाहिए, ठीक है। अब किसने किया ये सब तलाशी करेंगे, फिर 4-5 लोगों से पूछती है कि डू यू नो हु एग्जैक्टली हैज कमिटेड दिस मर्डर, डू यू व्हाट आर हिज फीचर्स, ये सब, ताकि उसको अरेस्ट किया जाए। फिर अगर पुलिस जाके पुलिस स्टेशन पे एफआईआर अगर करती है, तो इज दैट अ राइट प्रोसीजर? नो। ओके, ये याद रखें कि एफआईआर का मतलब ये होता है कि द रिपोर्ट हैज टू बी रजिस्टर्ड, the report has to be registered the moment the police receives first information। क्योंकि if the police
takes information for so many people, then the police goes to the scene of offense. वो scene of offense पे जाती है, फिर पूछताछ करके फिर अगर वो एफआईआर बनाए तो वो पहला इंफॉर्मेशन नहीं हुआ ना, that will be second information, third information, 10th information that they have received. 10वें इंसान से अगर वो ले रहे हैं तो it's 10th information. So FIR essentially should have first information. जितना भी उनको पता है पुलिस को, they have to record it in the first information report. ठीक है, that is important. Section 154 of CRPC talks about FIR. Okay, that's the first thing. Section 154 talks about FIR. ठीक है, FIR के बाद क्या होगा? Then the police will start investigating. अब investigation में there are several steps. One, arrest of the accused will happen. अगर accused है, उसको अरेस्ट कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो अरेस्ट कर सकते हैं. मैं बाद में आता हूं कि कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल में डिफरेंस, बट कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर है तो पुलिस बिना एक वारंट के दे कैन अरेस्ट. फिर उसी में सीन ऑफ ऑफेंस पंचनामा बनाएंगे. उसी में केमिकल एनालिसिस के लिए अगर कोई सैंपल्स हैं, ब्लड सैंपल्स वगैरह लैब को भेजने हैं, वो भी उसी में होगा. सर्च एंड सीजर उसी में होगा, किसी घर में जाके तलाशी लेना या कहीं पर कोई एरिया पे जाके तलाशी लेना वहीं होगा. पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन उसी में होगी. ये सब इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आ जाता है. एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर इन्वेस्टिगेशन. ओके, सो वंस दैट इन्वेस्टिगेशन इज completed, they will file something called the charge sheet, and charge sheet is filed under section 173. So please remember two sections so far, 154 and 173. 154 is where FIR is being done, all the investigation is done. At the end of the investigation, something called charge sheet is being filed under 173. Okay, now then the trial procedure will start. I'll come to trial procedure a little later. Maybe tomorrow is when we do trial procedure, because today I want to complete the preliminary topics until the filing of charge sheet. Okay, so the first topic that we're going to deal with today is FIR. Okay, it's an important topic. पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार, तो हम देखते हैं कि सेक्शन 154 क्या कहता है. So 154 says information should be given to officer in charge of a police station. इसको जनरली अब मुझे नहीं पता हर स्टेट में क्या क्या टर्म यूज किया जाता है. आपके स्टेट में आपको पता होगा. SHO इज द टर्म विच इज यूज्ड ऑफन. स्टेशन हाउस ऑफिसर कहते हैं. जनरली इंस्पेक्टर रैंक के होते हैं, सब इंस्पेक्टर हो या उससे ज्यादा सर्कल इंस्पेक्टर ऐसे रैंक के होते हैं, या हो सकता है कि वो थानेदार कहें, डिपेंडिंग ऑन योर स्टेट. तो CRPC में लिखा है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन. उनको ये इन्फॉर्मेशन देना है. आप रिटर्न में भी दे सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन, या ओरली भी दे सकते हैं. ठीक है, आप बस कह के भी दे सकते हैं उनको इन्फॉर्मेशन कि देखो यार फलानी जगह पर मर्डर हुआ, मैंने देखा. या आप उसको लिख कर भी दे सकते हैं. ठीक है, ये रिपोर्ट आपने पुलिस को दे दी. अगर आपने लिख कर दिया तो कोई बात नहीं, इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड में चला जाएगा. बट इफ यू हैव नॉट इफ यू हैव ओनली गिवन इट ओरली, द पुलिस विल reduce इट टू राइटिंग. ठीक है, पुलिस जो है उसको लिखित में दे विल कन्वर्ट इट. देन इट विल हैव टू बी साइंड बाय द इंफॉर्मेंट. जिसने भी इंफॉर्मेशन दी है, दैट पर्सन विल हैव टू साइन इट. ठीक है, एंड इट शुड बी इन द, अगर जब लिखित में कन्वर्ट किया जा रहा है, उस स्टेटमेंट को लिखा जा रहा है, उस रिपोर्ट को लिखा जा रहा है, तो जिस लैंग्वेज में आपने उस रिपोर्ट को दिया था वही लैंग्वेज में दैट विल हैव टू बी रिटन. सो इफ आई एम मेंशन, मैं हिंदी में अगर किसी को पुलिस SHO को कहता हूं कि देखो मैंने देखा है ऐसे कत्ल होते हुए, तो हिंदी में ही लिखा जाए. नाउ आफ्टर राइटिंग दैट, whatever is written will be informed, will be read over to the informant. उनको पढ़ के सुनाया जाएगा कि देखिए आपने ये सब कहा था, क्या ये सही है या नहीं. अगर वो कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं. एंड ऑल ऑफ दिस विल बी रिटन डाउन इन स्टेशन डायरी. कई बार स्टेशन डायरी को जनरल डायरी भी कहते हैं. ओके, सो इट विल बी रिटन डाउन इन स्टेशन डायरी और जनरल डायरी. ठीक है, और एक FIR की कॉपी उनको दे दें जिन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दिया था. अब ये सब बेसिक रूल्स हैं. आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि FIR के एसेंशियल्स क्या हैं, FIR रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, तो ये सारी चीजें आपको बुलेट पॉइंट्स में एक आंसर में आपको लिखनी ही. लॉजिकल है, ठीक है, आप आसानी से लिख सकते हैं.
बट यहां पर क्या इश्यूज आते हैं? सबसे पहला इशू ये होगा कि व्हाट इफ द पुलिस रिफ्यूजेस टू लॉन्च एन एफआईआर? अब ये कब हो सकता है? चलिए, मर्डर एक ऐसा केस है जहां पर पुलिस एफआईआर जनरली कर देती है, लेकिन थोड़ा सा कम वाला ऑफेंस ले लेते हैं, छोटा सा ऑफेंस लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट चीटिंग। आपके पास एक इंसान आता है और कहता है कि ये जमीन मेरी है, ठीक है? आपने उसके बातों पे भरोसा करके आपने उसको 2 लाख रुपए दे दिए एज अर्नेस्ट मनी, बयाना जो भी कहते हैं। एडवांस में आपने 2 लाख रुपए दे दिए। उसके बाद वो फरार, ही हैज एब्सकॉन्डेड, यू डू नॉट नो वो कहाँ गया है। अब आप पुलिस के पास जाते हैं कि आई हैव बीन चीटेड, तो सेक्शन 415 अगेन एग्रीवेटेड ऑफेंस 420 में है, तो सेक्शन 420 के तहत आप एफआईआर बुक कीजिए। आई हैव बीन चीटेड, मैंने 2 लाख रुपए किसी को दिया, उसने मुझे ये ही फॉल्सली रिप्रेजेंटेड दैट अ पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड बिलोंग्स टू हिम, बट बाद में पता चला कि इट डज नॉट बिलोंग टू हिम। तो यू नो ऐसे आप जाते हैं। अब पुलिस कहती है कि छोड़ो यार, मतलब तुमने क्यों दिए पैसे उनको, इतना तो वेरीफाई करना चाहिए था ना, हम कुछ नहीं कर रहे इसके अंदर, हमारे दूसरे और काम है, सो वी आर नॉट बॉदर्ड विद इट। तब आप क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू देन? If the police is refusing to register an FIR, if the police is refusing to take your report, what will you do then? Then the procedure under section 154 is, CRPC का 154 प्रोसीजर है कि मैं आपको सेक्शन दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि हम बेरा एक्ट भी थोड़ा रेफर करते हैं। ये है ना 154, तो इसके अंदर देखें प्रोसीजर क्या है। सब सेक्शन 3 में, ओके, प्लीज फॉलो। ओके, any person aggrieved by a refusal on part of an officer in charge of a police station to record the information referred in subsection 1 may send the substance of such information in writing and by post to the superintendent of police concerned. आप उस डिस्ट्रिक्ट के एसपी को भेजेंगे इन राइटिंग एंड बाय पोस्ट। अगर एसएचओ ने, स्टेशन हाउस ऑफिसर ने, पुलिस के थानेदार ने आपकी रिपोर्ट लेकर या लेने से मना कर दिया और एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया, तो व्हाट विल यू डू? यू विल इन राइटिंग एंड बाय पोस्ट इन्फॉर्म द एसपी। अब जहां कमिश्नरेट्स होते हैं वहां पर डीसीपी इज द इक्विवेलेंट रैंक, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस इज द इक्विवेलेंट रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो जहां कमिश्नरेट्स होते हैं, जैसे शहरों में ज्यादातर दिल्ली हो या मेरे हैदराबाद में कमिश्नरेट्स होते हैं, तो डीसीपी। खैर, एसपी को आप ये भेज दें, and who, if satisfied that such information discloses the commission of a cognizable offense, shall either investigate it himself or direct an investigation by another police officer. अगर उनको लगता है, एसपी को लगता है कि हाँ यार, ये इसमें एक कॉग्निजेबल ऑफेंस दिख रहा है इस रिपोर्ट के चलते हुए, तो क्योंकि यहाँ पर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस दिख रहा है, सिंस अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज बीइंग शोन, ही कैन इन्वेस्टिगेट इट हिमसेल्फ। एसपी चाहे तो खुद इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, या उनके कोई भी एक सबऑर्डिनेट ऑफिसर को कह सकते हैं कि प्लीज इस ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करें। दे कैन डू दैट। अब आप सोचें कि ये तो आम लोगों के लिए इतना आसान चीज तो नहीं है ना कि वो एसपी के पास जाएं और एसपी उनको रेस्पॉन्ड भी करें। सो द थिंग इज, व्हाट हैपेंस इफ देयर इज नो रेस्पॉन्स फ्रॉम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस? तब क्या होगा? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइल अ कंप्लेंट बिफोर द मैजिस्ट्रेट। ठीक है, द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइल अ कंप्लेंट बिफोर द मैजिस्ट्रेट। ये कहाँ होती है? देखिए, ये सारे आप प्लीज नोट्स बनाते रहें, ठीक है? हमने सेक्शन 154 पढ़ा, और 154 में हमने डिटेल्स देखे कि एफआईआर दर्ज कैसे होती है। फिर हम क्लॉज 3 देख रहे हैं कि एफआईआर दर्ज ना हो तो क्या स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप एसपी है। अब यहां पर भी ना हो तो क्या है? नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, कंप्लेंट फाइल होनी चाहिए बिफोर अ मैजिस्ट्रेट। ये कहां होती है? अंडर व्हाट सेक्शन? ये होगा सेक्शन 190 रेड विथ 200। ठीक है, 190 में कॉग्निजेंस का पावर है मैजिस्ट्रेट का, और 200 में वो प्राइवेट कंप्लेनेंट, जो भी कंप्लेनेंट जा रहा है उसको एग्जामिनेशन करने का पावर है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे सेक्शन 190 रेड विथ 200।
या 208 विथ 190, जैसे भी आप लिखें, ये दो सेक्शंस आर इंपॉर्टेंट. What does 190 say? It says, subject to the provisions of this chapter, any magistrate of the first class or any magistrate of the second class empowered on this behalf. ठीक है, ये ऐसे मैजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं? मे टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस, वो कोई भी ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले सकते हैं अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट सच ऑफेंस. यहां पर हम रुक जाते हैं. ठीक है, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास. ठीक है, जुडिशियल, वैसे सीआरपीसी में बहुत ऊपर लिखा हुआ है कि जब एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट दो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी होते हैं जो कलेक्टर को हम कहते हैं. तो मैजिस्ट्रेट्स बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन जब सिर्फ वर्ड मैजिस्ट्रेट यूज किया जाए तो वी हैव टू अज्यूम दैट, वी हैव टू डीम इट दैट इट इज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. ठीक है, तब हम उसको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही मान के चल रहे हैं. तो यहां पर कहा जा रहा है कि एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास. ओके, तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कॉग्निजेंस ले सकते हैं. कैसे लेंगे कॉग्निजेंस कोई भी ऑफेंस का? अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स, वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं. ठीक है, और कॉग्निजेंस लेते हुए उस कॉम्प्लेनेंट को एग्जामिन कर सकते हैं. तो कह सकते हैं आपने सेक्शन 420 का ऑफेंस बना आपके खिलाफ, आप पहले पुलिस स्टेशन गए, सुनवाई नहीं हुई, आप एसपी के पास राइटिंग और पोस्ट में आपने एसपी को लेटर लिखा, कोई जवाब नहीं आया, तब आपने क्या किया? आप मैजिस्ट्रेट के पास जाके कंप्लेंट फाइल कर रहे हैं. ठीक, ये तीसरा स्टेप आपने किया. अब मैजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं? मैजिस्ट्रेट ही मे, देखिए मे वर्ड है ना, मे मतलब मे और मे नॉट, शल नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं कि मैजिस्ट्रेट को कॉग्निजेंस लेना ही लेना होगा. नहीं, द मैजिस्ट्रेट इज एट द लिबर्टी, ही मे टेक कॉग्निजेंस, ही मे नॉट टेक कॉग्निजेंस. सो व्हाट कैन ही डू? हियर यू कैन ड्रॉ फ्लो चार्ट. ओके, ही कैन डू टू थिंग्स. वो दो चीजें में से एक चीज कर सकते हैं मैजिस्ट्रेट. पहला चीज ये कि अगर मैजिस्ट्रेट को लगे कि ठीक है, मैंने यहाँ पर कंप्लेंट पढ़ ली और मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर कि चीटिंग हुआ है, कॉग्निजेबल मतलब एक ऑफेंस हुआ है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो मैं फिर चलिए आप यहाँ पर आ जाइए सामने, मैं आपको ओथ दिलाता हूँ कि आई स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड टू स्पीक द ट्रूथ, द होल ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ. ओथ ले लीजिए, अब आपका अपना स्टेटमेंट दे दीजिए, आई विल रिकॉर्ड दैट स्टेटमेंट एंड आपके स्टेटमेंट के बेसिस पे मैं कॉग्निजेंस ले लूंगा. मैजिस्ट्रेट ये कर सकते हैं. दिस प्रोसीजर इज अंडर सेक्शन 200, जो मैंने अभी आपको बताया कि मैजिस्ट्रेट कैन give an oath, administer an oath to the complainant, and record the statement of that complainant, and take cognizance. ये सेक्शन 200 में होगा. या अगर मैजिस्ट्रेट को ऐसे लगे, जो कि अक्सर मैं करता हूं, जो मैजिस्ट्रेट को ऐसे लगे कि यार ये जो भी ऑफेंस बन रहा है, दिख रहा है, ठीक है, कंप्लेंट के हिसाब से ऑफेंस बन रहा है, चलिए चीटिंग का ऑफेंस बन रहा है, ये ज्यादा बेहतर होगा अगर पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करे. तो क्यों? क्योंकि एक मैजिस्ट्रेट फील्ड पे नहीं जाएंगे, वो जो भी इंक्वायरी करेंगे वो अपने कोर्ट में ही करेंगे. समन्स भेजते जाएंगे विटनेसेस को, विटनेसेस आते जाएंगे, उन विटनेसेस को पूछताछ, उनका एग्जामिनेशन होता जाएगा. सो द मैजिस्ट्रेट इज एक्चुअली नॉट गोइंग ऑन द फील्ड by himself. So magistrate may think that it is better if the police investigates, right? So what can a magistrate do? Instead of invoking section 200, where the magistrate is asking the complainant to come and give the statement and the magistrate is taking cognizance, instead of doing that, the magistrate can go for an alternative option which is given under section 156 clause 3. So let's go to 156 clause 3. Okay, I hope this space is fine. वैसे in the classes that I take for JudiSure, I'm very slow as compared to this. Since I only have 2 classes, I really want to cover a lot. So I hope you're following me. Okay, I'll take questions towards the end. ठीक है, प्लीज डोंट आस्क क्वेश्चंस राइट नाउ, आप प्लीज फोकस करें. टुवर्ड्स द एंड मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा और उसमें हम क्वेश्चंस भी देखेंगे, एंड उसके बाद प्रैक्टिकल मैं आपको एफआईआर दिखाऊं, ये सब दिखाऊं, तो शायद वैसे ही आपके बहुत सारे डाउट्स सॉल्व हो जाएंगे, है ना. देखिए 156 क्लॉज 3, एनी मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190, अभी हमने 190 पढ़ा है ना, तो इट्स लिंक टू दैट. सो एनी मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190 may order such investigation as above mentioned. Investigation
इन कॉग्निजेबल केस। तो मैजिस्ट्रेट अगर चाहे तो पुलिस को ऑर्डर कर सकती है कि आप इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करें, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आप एक फाइनल रिपोर्ट सेक्शन 173 के तहत, या तो चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट, इस दोनों का डिफरेंस मैं बाद में बताऊंगा आपको, आप इन्वेस्टिगेशन करके फाइनल रिपोर्ट मेरे सामने फाइल करें। तो समझ गए आप, मैजिस्ट्रेट के पास दो चॉइसेस हैं। एक, प्राइवेट कंप्लेंट जब मैजिस्ट्रेट के सामने आता है तो या तो वो खुद कॉग्निजेंस लेकर 190 में 200 सेक्शन 200 के तहत वो कंप्लेनेंट का बयान रिकॉर्ड करते हुए, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हुए कॉग्निजेंस ले सकते हैं। या अगर मैजिस्ट्रेट को लगे कि यार मैं ये सब क्यों करूं, मैं डायरेक्टली पुलिस को ऑर्डर कर देता हूं कि वो इन्वेस्टिगेट करे। अब पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना ही करना होगा, है ना। पुलिस पहले, आप जब पुलिस के पास गए थे तब पुलिस ने मना कर दिया, आप एसपी के पास गए तो एसपी से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो फिर आप मैजिस्ट्रेट के पास गए। अब मैजिस्ट्रेट ऑर्डर कर रहे हैं पुलिस को कि भाई तुम क्या कर रहे हो, अभी इन्वेस्टिगेट करो इसको। नाउ द पुलिस हैव नो ऑप्शन बट टू इन्वेस्टिगेट, दे हैव टू इन्वेस्टिगेट। ठीक है, तो दैट वे इट कैन बी डन, राइट। अब सवाल ये उठता है, एंड मैं आप सबसे ये सवाल कर रहा हूं, ठीक है, इसका जवाब मैं आपको बताऊंगा एक केस लॉ के साथ। द क्वेश्चन नाउ इज, क्या आप पुलिस के पास जब जाते हैं, ठीक है, पुलिस ने आपका रिपोर्ट नहीं लिया, एफआईआर करने से इनकार कर दिया, पुलिस हैव रिफ्यूज टू रजिस्टर एन एफआईआर बेस्ड ऑन योर रिपोर्ट। द क्वेश्चन नाउ इज, इंस्टेड ऑफ राइटिंग टू एसपी, आप एसपी के पास नहीं जाते, एसपी को आप कोई चीज नहीं लिखते, पुलिस ने मना कर दिया, तो क्या आप डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं? इज माई क्वेश्चन क्लियर? यस और नो का जवाब ही चाहिए मैं बस, ठीक है। पुलिस के पास आप गए स्टेशन पे, और आपने पुलिस को कहा कि देखिए चीटिंग का केस हुआ, ये तो जमीन दिखा के ये पैसे लेके भाग गया, वो जमीन उसकी है नहीं और वो बंदा तो लापता है, तो वी कैन नॉट फाइंड हिम, सो प्लीज रजिस्टर एन एफआईआर। पुलिस said no, no, we are not registering FIR. So can you now directly go to the magistrate? ठीक है, okay, wow, too many answers, but yes is the majority. Can we create a poll here? I don't know, we can do this. um okay, I've never tried. Oh wow, I can. Sorry guys, can I please try this? I've never tried this. Okay, it's keep saying loading. All right. Priyanka has given me the correct answer. Okay, the question is, can a complaint, okay, you know the question, okay, मैं और क्वेश्चन नहीं लिख रहा, बहुत टाइप करने में बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। yes और no question, okay, right. So let me see, most of you have given yes, okay, uh, and right, so we'll see. You know the question, is, my question is, I'll repeat, can the can you go directly to the magistrate without having to go to SP? Okay, again, you can, I think you can see the answers, is it? Okay, about 200 people have voted. Okay, what's are coming in? 210, 220. Okay. Hmm. Right. 230, I think that's about it. Or okay, 250 suddenly. 251. Okay, most of you are saying yes. Okay, I'm ending the poll now because now I have the answer for you. Please remember this answer along with what? Along with the case law. Okay, 236 votes with most of you are saying yes. Okay, so let's see. All right, now the
Answer is in this case. Priyanka Srivastav, okay, versus State of UP. ठीक है? The answer is in Priyanka Srivastav versus State of UP. Let me, if you want the citation, I can give you the citation also. Where is the scroll? Right, I have to come back to page number 25. Okay, this is the case. Please note this case down. Okay, this is the case law. Priyanka Srivastav versus State of Uttar Pradesh 2015 का केस है. साइटेशन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. प्लीज ये गलती ना करें कि मेंस के एग्जाम में आप साइटेशन भी लिख रहे हैं. नहीं लिखना है. ठीक है, बिल्कुल भी नहीं लिखना है. आप ज्यादा से ज्यादा ईयर लिखें तो आप लिख सकते हैं. 2015 का केस है. ठीक है. Priyanka Srivastava versus State of UP. Chief Justice at that time, Deepak Mishra, had given this. Okay. So let's go to the relevant paragraph, okay, which is talking about this. So, देखिए, it says, at this stage, it is seemingly to state that power under Section 156, Clause 3 warrants application of judicial mind. A court of law is involved. It is not the police taking steps at the stage of 154 of the code. Okay. A litigant at his own whim cannot invoke the authority of the magistrate. तो जिन जिन लोगों ने नो कहा है, you are correct. The answer to that question is no. The person cannot directly go to the magistrate. It is important that SP को letter लिखना जरूरी है. You have to write to SP. It is only after SP does not respond can you go. Okay, now the question is, how will we know if the SP does not respond? It's possible that SP may not even reply. Then what? Uska procedure Supreme Court has given. See, a principled and really grieved citizen with clean hands must have free access to invoke the said power. It protects the citizens, but when pervert litigations take this route to harass their fellow citizens, efforts are to be made to scuttle and curb the same. Now, what are this saying? This is the important part. Okay, please do follow me. In our considered opinion, a stage has come in this country where Section 156 Clause 3 CRPC applications are to be supported by an affidavit duly sworn by the applicant who seeks the invocation of the jurisdiction of the magistrate. And that affidavit will have to show what that prior applications under Section 154 Clause 1 and 154 Clause 3 have been made. तो प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया अब कि पहले आप पुलिस स्टेशन जाएं, पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दिया, तो आप जरूरी है कि आपको एसपी के पास रिटन में देना होगा एप्लीकेशन, और एसपी ने अगर रिस्पॉन्ड नहीं किया तो आप एक एफिडेविट में लिखें, और एफिडेविट में आप क्या लिखेंगे कि मैं पहले पुलिस स्टेशन गया था, वहां पर कुछ मेरा काम नहीं बना, तब मैं गया एक एसपी के पास, वहां से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं, मैजिस्ट्रेट के पास आ रहा हूं. ये चीज एफिडेविट में लिखी होनी चाहिए. बाय एन एफिडेविट दिस हैज टू बी shown. So this case is adding to the provision of the CRPC. So the answer is that you cannot directly go to the magistrate. You have to go to the magistrate only after Section 154 Clause 3 route fails. Only after the SP does not respond. ठीक है, ये है प्रियंका श्रीवास्तव केस. Okay, you can read this case. It's also known for its very, I won't say difficult, but maybe high standard English. Because if you actually look at the first paragraph itself, it always surprises me. The first paragraph of this case, where is the case starting? It's starting here. Okay, see the first paragraph. Okay, this is the first paragraph. कोई full stop नहीं है. This is just one sentence.
ओके, आप अपने फ्री टाइम में यू कैन रीड दिस, इंडियन कानून में भी मिल जाएगा। यहां तक, यहां पर पहला फुल स्टॉप है। दिस इज जस्ट वन सेंटेंस। ओके, इट्स इंटरेस्टिंग। ठीक है, सो प्लीज डू रीड। ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक, एफआईआर। ओके, ऑल राइट, नाउ वन मोर थिंग। FIR, has to be done fine. We've, understood that much. Now the question is there any, is there any compulsion on the police to register an FIR? क्या पुलिस को FIR रजिस्टर करना जरूरी है? FIR अगर नहीं कर रहे हैं तो यू आर टेकिंग दिस प्रोसीजर, बट does CRPC say that police must register FIR when a cognizable offense is shown? ठीक है, again it might take time if I ask for a poll, but so many answers already in the chat. The correct answer is yes, they have to. जब कभी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस दिख रहा हो, पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करना जरूरी है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको और एक केस दिखाऊंगा। ओके, ये लेटेस्ट केस एक है, वैसे इसी साल आया था, सिंधु जनक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसी साल आया, तो हो सकता है कि प्रीलिम्स में पूछा जाए वेदर यू आर टेकिंग दिल्ली जुडिशरी और महाराष्ट्र और एनी ऑफ द जुडिशरीज, अभी जो नोटिफिकेशन है। बट सिंधु जनक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये आप प्लीज याद रख लें क्योंकि इसी साल आया था। इस केस में वन अर्लियर डिसीजन वाज डिस्कस्ड एंड दैट इज ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी। केस का नाम है ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी, वो डिस्कस हुआ था। मैं आपको एक रिलेवेंट 2-3 लाइन आपको ललिता कुमारी के जजमेंट से आपको दिखाता हूं, ठीक है, तो आपको अच्छे से याद हो ये चीज। ओके, इसके अंदर, वन सेकेंड, या इन दिस, सी, इन ललिता कुमारी, लेट मी गो डाउन लिटिल, ये अभी हेड नोट ही चल रहा है। ओके, सी हियर, this is the relevant part of the judgment. Okay, consequently, ठीक है, the condition that is sine qua non for recording an FIR under section 154 of the code is that there must be information and that information must disclose a cognizable offense. ठीक है, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए पुलिस के पास और उस इंफॉर्मेशन से एक कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज होना चाहिए। If any information disclosing a cognizable offense is led before an officer in charge of the police station, satisfying the requirement of section 154 clause 1. अब ध्यान से सुनिए, the said police officer has no other option except to enter the substance thereof in the prescribed form, that is, to register a case on the basis of such information. The provision of section 154 of the code is mandatory and the officer concerned is duty bound to register the case on the basis of information disclosing a cognizable offense. So 154 should be given literal meaning and the word shall क्योंकि use हुआ है तो it should be used. तो देखिए कितना clearly the Supreme Court has said in Lalita Kumari, and the same thing has been repeated this year in Sindhu Janak versus State of Maharashtra, that अगर cognizable offense दिख रहा हो तो police officer has no choice, he will have to register an FIR. अगर देखिए, he will have to register an FIR, ये अगर है कि क्या पता कोई क्राइम बाद में इन्वेस्टिगेशन करके पता ही ना, ऐसा लगे कि इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन के बाद लग रहा है कि यार ये तो ऑफेंस हुआ ही नहीं था, तो वो बात की बात है। अगर ऑफेंस नहीं हुआ तो फाइनल रिपोर्ट फाइल कर देंगे, चार्जशीट नहीं फाइल करेंगे, लेकिन एफआईआर रजिस्टर करना जरूरी है। इट इज मस्ट, दे हैव नो अदर ऑप्शन बट टू डू इट। दिस इज व्हाट ललित कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी, केस का नाम ऐसे है, स्टेट ऑफ यूपी नहीं, गवर्नमेंट ऑफ यूपी है। ठीक है, ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी हैज सेड दिस सेम थिंग हैज बीन हेल्ड इन सिंधु जनक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र आल्सो। ओके, सो आई होप दैट्स क्लियर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इफ देयर इज डिले इन एफआईआर? अगर एफआईआर रजिस्टर करने में बहुत देर होती है तो what can be done? What if there is a delay in registering of FIR? This has been asked in
several judicial exams also, even in mains, के discuss the relevance of delay in FIR. अगर मान लीजिए offense, let's say murder or whatever offense has happened today, और आपको ये पता है कि offense हुआ है, लेकिन आप एक हफ्ते बाद रजिस्टर करते हैं। चलिए मर्डर बहुत ज्यादा हो गया, उसमें तो इंसान ही मर जाता है, लेकिन एक इंसान को एक इंसान पिटा है, एक इंसान को मारा गया, वन पर्सन हैज बीन बीटन। ठीक है, अगर नॉर्मल सा इंजुरी होता है तो हर्ट होगा, सेक्शन 319 में उसका डेफिनेशन है आईपीसी के। 320 ग्रीवियस हर्ट, बहुत सारे चीजें हैं, एमैस्कुलेशन, प्राइवेशन ऑफ हियरिंग ऑफ एन ईयर, साइट ऑफ, आपको पता ही होगा ये सब। या 21 दिन तक उसको दर्द है, he is unable to pursue, unable to carry on with the ordinary pursuits of life for 21 days। ठीक है, तो ग्रीवियस हर्ट होगा। तो मान लेते हैं कि वन पर्सन, एक इंसान को मारा गया और उसका फ्रैक्चर हुआ उसके वजह से, तो फ्रैक्चर ऑफ अ टूथ, तो ग्रीवियस हर्ट है। अब ये 1 महीने तक चुप रहता है, उसके बाद ये पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि यार देखो मेरा फ्रैक्चर हुआ था। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिले? क्या कोई ऐसा टाइम लिमिट है कि इतने ही लिमिट में आपको पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए था, इतने बाद अगर हुआ तो नहीं होगा? सो राइट, अ लॉट ऑफ श्रेय गर्ग एंड शमा, वेरी गुड आंसर्स। द डिले, वैसे अगर डिले हो रहा है जनरली इट मे नॉट बी ऑफ वेरी हाई सिग्निफिकेंस, बट इट विल रेज क्वेश्चंस ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन केस। क्वेश्चंस रेज होंगे कि डिले क्यों हुआ। अगर डिले हुआ तो क्या इस डिले का मतलब ये है that the information and the case is false, or is it fabricated one? It has to be seen. However, again, the Supreme Court said, no, see, there is no such time limit. There can be delay, and the courts will have to look at that delay on a case by case basis. Okay? I'll show you one case for this. Okay, and that is, please do note this down. This is also a very important case. In fact, Kelkar on CRPC, which is like the standard textbook CRPC पढ़ने के लिए, उसके अंदर this has been dealt with extensively, and the case is Ramdas versus State of Maharashtra. ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा ये। देखिए, रामदास वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2007 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, व्हाट हैपेंस इन अ केस ऑफ डिले? ओके, इट्स बीन डिस्कस्ड हियर। ओके, 2-3 लाइन में आपको पढ़ रहा हूं, प्लीज थोड़ा फॉलो करें। ओके, देखिए, इट इज नो डाउट ट्रू that mere delay in lodging the first information report is not necessarily fatal to the case of the prosecution. Just because delay हुआ है, देरी हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि prosecution का केस पूरा गिर जाएगा, वो false केस है, ऐसा हम नहीं कहेंगे। लेकिन however, the fact that the report was lodged belatedly is a relevant fact of which the court must take notice. ये चीज कि पुलिस के सामने रिपोर्ट जो दर्ज की गई थी वो देरी से दर्ज की गई थी, ये एक रेलेवेंट फैक्ट है, और कोर्ट को इस दिस फैक्ट हैज टू बी कंसिडर्ड बाय द कोर्ट ड्यूरिंग द ट्रायल एंड एट द टाइम ऑफ गिविंग जजमेंट। लेकिन और क्या गाइडलाइंस हैं? दिस फैक्ट हैज टू बी कंसिडर्ड इन द लाइट ऑफ अदर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, and in a given case the court may be satisfied that the delay in lodging the report has been sufficiently explained। तो हो सकता है कि आप उस फैक्ट और उस सर्कमस्टांसेस में देखें कि डिले क्यों हुआ था। अगर सिंपल सा हर्ट था, और लेट्स से क्रिमिनल इंटिमिडेशन, मतलब आपको कोई आके डराता है, कोई गाली देता है और डराता है, दो चीजें हुई। कोई इंसान आपके सामने आके गाली देता है आपको और डराता है कि देख, मैं तुमको देख लूंगा। ठीक है, तो यहां पर दो ऑफेंसेस नॉर्मली बनते हैं। एक बनता है 294 में, सेक्शन 294 में, यूज ऑफ ऑब्सीन वर्ड्स, और एक बनेगा 506 में। आईपीसी के सेक्शंस बता रहा हूं मैं आपको, 294 एंड 506। 506 इज क्रिमिनल इंटिमिडेशन। दो ऑफेंसेस बनते हैं। ठीक है,
अब आपको धमकी दे गई, आपको डराया गया कि देखना कल तक तेरा क्या हाल होगा, और आप कुछ नहीं करते। आप एक हफ्ते बाद पुलिस के पास जाके रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स कोर्ट बोलेगा कि भाई आपको जब धमकी दी गई थी आप फौरी पुलिस के पास भागते, आपने क्यों देरी की? तो इट इज वीकनिंग द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन का केस वीक हो रहा है। लेकिन लेट्स थिंक ऑफ अ वेरी ग्रीवियस एंड हीनियस ऑफेंस, एन ऑफेंस लाइक रेप। इस केस में सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात की गई थी, रामदास वर्सेस यू नो, ये जो केस था, दिस इज अ केस ऑफ रेप, सेक्शन 376 रेड विथ 34, कॉमन इंटेंशन था, मल्टीपल अक्यूज्ड थे। ठीक है, तो रेप की बात की गई। यहां पर देरी हुई थी एफआईआर दर्ज करने में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये देरी वाजबी है, दिस डिले इज ओके, it is reasonable and it is legitimate. Why? Because a victim of rape cannot be expected to immediately go to the police and inform. In fact, she cannot even be expected to inform her family or friends because she will be in that state of shock that she does not know how to respond. She will first have to come out of that shock, which will take good, amount of time. She will have to muster up the courage, and then she will have to inform maybe the family. Then the family will have to, even for them it's a shock, they will also have to deal with it. And जब सब कुछ हो गया तो डिसाइड करेंगे ये लोग, हो सकता है इसके अंदर एक हफ्ता लगे, 10 दिन 15 दिन लगे टू डिसाइड कि चलो यार पुलिस के पास चलते हैं। सो दिस डिले इज लेजिटिमेट। ठीक है, देयर माइट बी अ वेरी लेजिटिमेट डिले ड्यू टू दिस। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पर उन्होंने पैराग्राफ नंबर 24, यू कैन रीड दिस लेटर, but they have said that there are cases where much time is consumed in taking the injured to the hospital for medical aid and रिपोर्ट करने के लिए टाइम नहीं मिलता। देयर मे बी केसेस वेयर देयर माइट बी अकाउंट ऑफ फियर और थ्रेट्स कि पुलिस स्टेशन जाओ तो और क्या हो जाएगा, और it is also possible to conceive of cases where the victim and the members of his or her family belong to such strata of society that they may not even be aware of their right to report to this thing. तो हो सकता है कि उनको ये भी नहीं पता है, उनको वन सेकेंड, उनको ये भी नहीं पता कि दे हैव टू एक्चुअली गो टू द पुलिस स्टेशन एंड रिपोर्ट द ऑफेंस। ठीक है, यार आई एम सो सॉरी, आई हैव टू पुट द कैट आउटसाइड। I'm sorry for this. Did not expect that interruption. Okay, but that delay might happen. So if that delay is happening, it is only reasonable. ठीक है? So I hope you've understood this case. This is Ramdas versus State of Maharashtra. ठीक है? चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट था, नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम्स आपके वैसे दिल्ली जुडिशरी अगर आप दे रहे हैं तो करीब आ रहे हैं, तो आई होप यू डू दैट। ओके, now, this is how the FIR is done. Let's look at a few more things in FIR now, and then I'll show you the actual, how an FIR is registered. ये PPT में आपको भेज दूंगा, so do not worry about it. Okay. Then there is the question of evidentiary value of an FIR. कि एक FIR की वैल्यू क्या होती है एविडेंस में? अगर FIR में थोड़ा सा ऊपर नीचे है और बाद में इन्वेस्टिगेशन में कुछ और पता चलता है, तो विल थिंग्स चेंज? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि एफआईआर में ये लिखा गया था कि वन पर्सन, द अक्यूज्ड, ही यूज्ड अ एन आयरन रॉड टू हिट द अदर पर्सन ऑन हिज हेड, ड्यू टू विच द अदर पर्सन डाइड। एक आयरन रॉड का इस्तेमाल करके एक इंसान ने दूसरे के सर पे मारा, जिसकी वजह से दूसरा इंसान मर गया। ठीक है ना, इन्वेस्टिगेशन के में पता चलता है, पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कि वो आयरन रॉड नहीं था, दैट वाज अ वुडन, basically wooden rod, or a very thick stick, okay, जिससे मारा गया था।
तो क्या हम ये कहेंगे कि एफआईआर में तो अलग था, आपके इन्वेस्टिगेशन में अलग है, तो केस तो वीक हो गया? नहीं, एफआईआर इज नॉट अ सब्सटैंटिव एविडेंस, प्लीज रिमेंबर दिस। ओके, एफआईआर एक सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन में बी रॉन्ग, उसमें उतना डिटेल्स होने की शायद नहीं होंगे। सो एफआईआर इज नॉट अ सब्सटैंटिव एविडेंस, लेकिन वो बस दो जगह यूज किया जाता है। एक जगह के टू corroborate the person who has made that, who has lodged that एफआईआर। मैंने पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर दर्ज, मतलब रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसकी वजह से एफआईआर वो हुआ, लॉड्ज हुआ, रजिस्टर हुआ। अब ट्रायल के टाइम पे मैं एज अ विटनेस जाता हूं, तो मैं जो ट्रायल के टाइम पे कहता हूं वो चीजें, अगर एफआईआर में जो मैंने कही थी वो चीजें अगर सेम है, तो मेरा एविडेंस स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी यही बात कही थी, अभी भी यही बात कर रहा हूं, तो मैं अपनी बात पे कायम हूं। आई एम ऑन माई, the version is true, the narrative is true, I'm not changing my narrative. Whatever I told the police at that time when the offense happened and whatever I'm telling the court right now, it's the same. So it is corroborating, that FIR is corroborating my statement in the court. If whatever I told the police is different and whatever I'm telling the court is different, then it is contradictory. So the evidentiary value of my statement will reduce. As a witness, my statement will reduce. For example, in FIR, I went to the police and I said, "Yeah, I have seen murder, and the murder was done with by a iron rod on the deceased head. Iron rod से सर पे मार दिया था, जिसकी वजह से the deceased passed away. But during the course of investigation, the police finds that it was not an iron rod. It was in fact a gun that was used to shoot the deceased." अब एक आयरन रॉड और गन में तो एक रीजनेबल पर्सन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वुडन स्टिक आयरन रॉड में कंफ्यूज हो रहा है, फिर भी समझ में आ सकता है, दूर से देखा तो पता नहीं चला कि किस सब्सटेंस का वो चीज थी। लेकिन गन इज अ डिफरेंट थिंग, आयरन रॉड इज अ डिफरेंट थिंग। अब मैं कोर्ट में आके बोलता हूँ कि मैंने भी गन ही देखा, तो कोर्ट कहेगी कि भाई अगर आपने गन से शूट शूट होते हुए आपने देखा है, देन व्हाई डिड यू टेल द पुलिस दैट यू हैव सीन एन आयरन रॉड बीइंग यूज्ड? सो माय स्टेटमेंट, my value as a witness is being reduced because whatever I've said earlier and whatever I'm saying now, it's contradictory. ठीक है? So this is the relevance of FIR in evidence, that you can use it to corroborate the maker or contradict the maker. The relevant sections of Evidence Act is corroboration will happen under section 157 and contradiction will happen under section 145. Okay, 157 and 145, right? Now, I'll show you one FIR, I think. It's a very random FIR, okay? We'll find out what sections are there. See, this is how an FIR looks like. This is a very recent one, 10/11/2023. Okay. देखिए, normally these are the columns that are there. It might slightly differ from state to state. In my state, the court procedure and the language of the court is English. तो English में ही रहता है, ठीक है? Regional language is not used. तो हो सकता है कि हिंदी स्टेट्स में जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान वगैरह में हिंदी में लिखा जाता है FIR, लेकिन कॉलम्स मोर और लेस सेम ही रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन, ईयर, FIR नंबर, जिसको हम क्राइम नंबर भी कहते हैं। FIR नंबर और क्राइम नंबर एक ही चीज होता है, तो इसी को हम क्राइम नंबर भी कहते हैं। और क्राइम नंबर हर पुलिस स्टेशन का, हर पुलिस स्टेशन वाइज क्राइम नंबर होता है, FIR नंबर होता है। तो हर साल ये स्टार्ट होगा, तो 2024 जब आ जाए तो सबसे पहला FIR 2024 का विल बी FIR नंबर 1 ऑफ 2024। ठीक है, तो हर साल रीस्टार्ट होता है, ये जो क्राइम नंबर हो या FIR नंबर हो। ठीक है, हर पुलिस स्टेशन के अलग अलग नंबर्स होते हैं, तो ये कहना पड़ेगा कि वी विल हैव टू आल्सो स्पेसिफाई विच पुलिस स्टेशन
इज दैट क्राइम रजिस्टर्ड इन, टू फाइंड आउट। ठीक है, डेट कब एफआईआर बना था, एक्ट आईपीसी सेक्शंस 448, 322, 290, 506, मतलब क्या क्या किया गया उसके। एक तो ट्रेसपास लग रहा है, घर में घुसे हैं, मारा है 323 हुआ, गाली दी है उसने, ऑब्सीन लैंग्वेज हुआ है 290, और थ्रेटन भी किया 506, क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी हुआ है, और एक नहीं मल्टीपल लोगों ने किया है, और वो सब ने कॉमन इंटेंशन के साथ किया था। सो इट इज रेड विथ सेक्शन 34, सारे आईपीसी के सेक्शन हैं। ठीक है, अकरेंस कब हुआ, ट्यूसडे 31/10 को अकरेंस हुआ था। इंफॉर्मेशन रिसीव्ड एट पीएस ऑन 10/11, देखिए 10 दिन का डिले है ये। ठीक है, ओके। कैसे, रिटर्न में मिला था, ओरल इंफॉर्मेशन नहीं, रिटर्न कंप्लेंट ही उनको, मतलब रिपोर्ट ही उनको मिली थी। ठीक है, प्लेस ऑफ अकरेंस, डिस्टेंस फ्रॉम पीएस 5 किलोमीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट, पुलिस स्टेशन से एड्रेस दिया गया, कंप्लेनेंट किसने दी कंप्लेनेंट, उसके डिटेल्स हैं यहाँ पर। अक्यूज के डिटेल्स हैं, 2 अक्यूज हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए कॉलम नंबर 8 से रीजंस फॉर डिले इन रिपोर्टिंग बाय द कंप्लेनेंट और इन्फॉर्मेंट। ये क्यों डिले हुआ, 10 दिन का डिले हुआ ना, क्यों? बिकॉज यहाँ पर उन्होंने लिख दिया कंप्लेनेंट डिस्कस्ड विथ हर फैमिली मेंबर्स, हेंस द डिले। उसने फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्कस किया, इसलिए डिले हुआ। अब ये वो उन्होंने लिख दिया। पर्टिकुलर्स ऑफ प्रॉपर्टी स्टोलन, वो तो नहीं है इसके अंदर, बस मारपीट हुई तो नहीं है। टोटल प्रॉपर्टी से भी ब्लैंक छोड़ दिया उन्होंने। ठीक है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट वगैरह कुछ नहीं। इंक्वेस्ट रिपोर्ट कब होगा, इंक्वेस्ट रिपोर्ट तब होगा इफ देयर इज अ डेथ कॉस्ट। तो सेक्शन 174, याद रखें इस चीज को, सेक्शन 174 टॉक्स अबाउट इंक्वेस्ट रिपोर्ट टू बी डन बाय द पुलिस। अगर कोई आउट ऑफ ऑर्डिनरी, मतलब कोई ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस के अलावा कोई डेथ होती है, सुसाइडल डेथ हो सकती है, होमिसाइडल डेथ भी हो सकती है, एक्सीडेंटल डेथ भी हो सकती है, बट ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस की डेथ नहीं है, कोई यू नो नॉन ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस की डेथ है, तो पुलिस विल गो देयर एंड दे विल कंडक्ट इंक्वेस्ट, एंड दैट इज अंडर सेक्शन 174। वो बॉडी को देखेंगे, मैप बनाएंगे, फोटोज लेंगे, और देखेंगे कि क्यों डेथ हो सकती है। दैट इज कॉल्ड इंक्वेस्ट, ये 174 में दिया गया। अगर पुलिस के कस्टडी में डेथ हो तो, मतलब पुलिस ने किसी इंसान को अरेस्ट कर रखा है और पुलिस के कस्टडी में डेथ हुई, तब पुलिस क्या खुद इन्वेस्ट करेगी? नहीं, क्योंकि वहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। हो सकता है कि पुलिस के टॉर्चर के वजह से डेथ हुई हो। तब सेक्शन 176 के तहत, 176 के तहत मैजिस्ट्रेट विल कंडक्ट द इंक्वेस्ट। खैर ऐसा मौका मुझे कभी नहीं है, बट द मैजिस्ट्रेट विल कंडक्ट द इंक्वेस्ट। ओके, ठीक है, इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ठीक है, ऑनर्ड सर, this was a case that occurred at so and so date at so and so time, reported so and so this thing by this person against the accused, kya कि they have criminally trespassed into the complainant's house, 448, abused her in filthy language, 294, beat her with hands, 323, threatened her with dire consequences to kill, 506। बन गए यहाँ पर 4 sections in petty family issues, hence the complainant has requested to take necessary action against the above accused persons as per law। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, they have done this। ठीक है, they have registered the case and they have took up investigation, and FIR is read over to the complainant or informant, admitted to be correct and recorded, and a copy is given to the informant of free of cost। ये सारे सेक्शन 154 में दिए गए हैं कि उनको पढ़ के बताएं, और कुछ उनको एडिशंस करने तो एडिशंस कर सकते हैं, और एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दें। तो ये सब उन्होंने कर दिया। ठीक है, साइन वगैरह एंड ये हो गया। जैसे एफआईआर दर्ज होती है, इमीडिएटली द इंफॉर्मेशन विल हैव टू बी गिवन टू द मैजिस्ट्रेट। सो देखिए, डेट एंड टाइम ऑफ डिस्पैच द कोर्ट। तो जैसे एफआईआर पुलिस स्टेशन में दर्ज होती है, वो एफआईआर की ओरिजिनल कॉपी मैजिस्ट्रेट को भेज देते हैं। फोटो कॉपी पुलिस स्टेशन में रखी जाती है, पुलिस विल कीप द फोटो कॉपी, बट ओरिजिनल कॉपी इज इमीडिएटली सेंट टू द मैजिस्ट्रेट। वो मैजिस्ट्रेट को भेजा जाता है। ठीक है, दिस इज हाउ एन एफआईआर लुक्स लाइक। ओके, इसके अंदर लेट मी शो यू अ फ्यू मोर थिंग्स। व्हाट इफ एफआईआर लिखने के बाद, ठीक है, व्हाट इफ एफआईआर लिखने के बाद
पुलिस को लगे कि वी हैव टू चेंज सम सेक्शंस। मतलब आप देखें कि एफआईआर हुआ था 323 में, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि 323 में तो सिंपल हर्ट हुआ ना, तो सिंपल हर्ट नहीं, ये एक्चुअली ग्रीवियस हर्ट हुआ, वो भी यूजिंग अ डेंजरस वेपन। समझ गए मेरी बात को? एफआईआर दर्ज किया था 323 में, ये सिंपल हर्ट हुआ है। अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, तो इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को पता चलता है पूछताछ करने के बाद, ये इंजुरीज देखने के बाद, कि यार ये तो सिंपल हर्ट नहीं, ये तो ग्रीवियस हर्ट हुआ है, इस इंसान का हाथ पे फ्रैक्चर लगा है, और वो भी एक बहुत डेंजरस वेपन के साथ हुआ है, एक आयरन रॉड के साथ ही मार दिया, ये एक्स के साथ मार दिया। तो द पुलिस नाउ थिंक्स कि ये तो 323 में नहीं, ये तो 326 में केस बनेगा, कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट यूजिंग डेंजरस वेपन्स और मीन्स। 326 में है ये, तो 326 में केस बनना चाहिए, पुलिस को ऐसे लगता है। तो अब क्या पुलिस एफआईआर को ऑल्टर करेगी? क्या पुलिस ऐसे 323 को काट के 326 लिखेगी? नहीं, इसका एक प्रोसीजर होता है। इसमें क्या होता है, द पुलिस विल फाइल अ मेमो बिफोर द मैजिस्ट्रेट seeking the permission of the magistrate to alter the section. What will happen now? पुलिस क्या करती है, मैजिस्ट्रेट के सामने एक मेमो फाइल करती है, ये कहते हुए कि हम सेक्शन को ऑल्टर करना चाह रहे हैं, रीजंस देते हुए। द मैजिस्ट्रेट विल अलाउ इट, तब वो सेक्शन उस एफआईआर में ऑल्टर होगा। वो हाउ विल दैट बी? एक एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, देखिए, दिस इज हाउ द मेमो लुक्स लाइक। दिस इज बिफोर द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, पुलिस फाइल कर रही है कि सब्जेक्ट इज सेक्शन ऑल्टरेशन मेमो, section 338 of IPC has to be read instead of 337. I hope you know what 337, 338 is. If not, fine. IPC classes जब होंगे तब आप सीख जाएंगे. 337 is causing hurt by rash and negligent act or any negligent act. कोई negligent act की वजह से अगर hurt होता है तो वो 337 में offense बनता है. So for example, if you're driving your vehicle, यहाँ पर क्या है? He was driving a scooty, right? No, he was driving a tractor. Sorry. ट्रैक्टर पे ये जा रहा था और इसने एक स्कूटी पे एक इंसान आ रहा था, तो ट्रैक्टर से अपने स्कूटी को उसने, देयर वाज एन एक्सीडेंट ड्यू टू व्हिच ऑब्वियसली स्कूटी वाला ही गिरेगा ना, तो स्कूटी वाला गिर गया एंड उसको हर्ट हुआ। तो हर्ट एज पर 319, सेक्शन 319 में हर्ट का जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से बॉडीली पेन, डिसीज एक्सेट्रा, तो हर्ट हुआ, तो एफआईआर 337 में रजिस्टर कर दिया गया। बट इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन जैसे चल रही थी, तो इन्वेस्टिगेशन में पता चला ये हर्ट नहीं, ये ग्रीवियस हर्ट है। ठीक है, तो ग्रीवियस हर्ट है क्यों, यहाँ देखिए, एज सच बोथ फेल ऑन द रोड, एज अ रिजल्ट महेश हु इज द स्कूटी जो चला रहा था वो, ही हैज रिसीव्ड इंजुरी ऑन chin, tongue, right leg, and his father received broken ribs, teeth injury। तो broken ribs मतलब फ्रैक्चर ही हुआ, तो ये ग्रीवियस हर्ट हो गया। तो causing grievous hurt by rash and negligent act, वो 338 में। तो एफआईआर रजिस्टर हो गया था 337 में, इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि 337 है, 338 का ऑफेंस है, तो अब पुलिस मैजिस्ट्रेट के सामने फाइल करी एक मेमो, ये कहते हुए कि देखिए 338 को हम सेक्शन बदलना चाह रहे हैं, वी वांट टू ऑल्टर द सेक्शन टू 338, तो आप परमिशन दें। तो इन्होंने ये सब लिख दिया, ठीक है, ये सब लिख के लास्ट में दे हैव सेड दैट देयरफॉर इट इज रिक्वेस्टेड to the honorable court may kindly read the section of law as under section 338 IPC instead of 337 IPC. Hence, prayed. SI is the SHO of that particular police station, so he has filed. And यहाँ पर the magistrate will simply write allowed or permitted, and that is sufficient. वो section alteration FIR में हो जाएगी. That's how section alteration works. Okay. So far, I hope this is clear. ठीक है. Right. देखिए, ये प्रोसीजर सीआरपीसी में कहीं है नहीं, तो सीआरपीसी में सेक्शन ऑल्टरेशन का प्रोसीजर कहीं नहीं दिया गया। ठीक है, दिस इज द प्रोसीजर दैट इज फॉलोड। ओके, तो आपको ये आंसर्स में लिखना होगा, ओके, एज टू व्हाट प्रोसीजर इज बीइंग फॉलोड। ओके, नाउ लेट्स लुक एट अ फ्यू मोर थिंग्स।
Does anybody want a break? We can take a 5-minute break if you want. Give me yes or no in the chat if you want a break. I can continue. No? Okay. All right, all right. Okay. All right. Most of you are saying no. Okay, so we will not take a break. Let's continue. Okay. Now, this is about FIR, right? So I'll close these. Let's go back to our PPT, right? What happens in a case where the police have received a complaint? Sorry, there is some अक्षिता 216 तो चार्ज ऑल्टर कर रहे हैं ना, सेक्शन थोड़ी ऑल्टर कर रहे हैं, वो तो नहीं. ठीक है, नहीं अक्षिता 216 is about alteration of charge. Charge is framed at the time of at the start of the trial in the court. ठीक है, that's not alteration of FIR. Okay, that is trial procedure which we're going to deal with in tomorrow's class. Okay, all right, ठीक है. Okay, so that is about FIR. Okay. Now, what happens if the police receives a report in non-cognizable offenses? Now, यहाँ पर we need to know what is cognizable offense and what is a non-cognizable offense. What is cognizable offense? Cognizable offense is when police can arrest without a warrant. पुलिस अपने खुद से अगर अरेस्ट कर सकती है तो उसको हम कहते हैं cognizable offense. Okay? If the police if there is an offense जहां पर police cannot arrest on their own, that is called non-cognizable offense. अगर पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है उसको हम कॉग्निजेबल ऑफेंस कह सकते हैं. अगर पुलिस को अरेस्ट करने के लिए वारंट चाहिए, इफ द पुलिस रिक्वायर्स अ वारंट, उसको हम कहेंगे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. ये डेफिनेशंस में दिया गया है. तो ऑब्वियसली कॉग्निजेबल ऑफेंस इज अ मच सीरियस ऑफेंस, राइट? तो अगर लेट्स से police have received a particular complaint report saying that a non-cognizable offense has happened, can the police start investigation immediately? क्या पुलिस immediately investigation start कर सकती है? Can the police start immediately investigation immediately if they have received report on? Yeah. The answer is no. Okay, the answer is no. The police does not have the power to investigate in a non-cognizable offense. पुलिस के पास पावर नहीं होता to investigate in a non-cognizable offense. ठीक है, most of you have gotten the answer correct. So the answer is no. ये section 155 में दिया गया है. Okay, this is given in section 155. Now, कैसे लेती है? तो फिर what will happen? क्या करेंगे उसका हम? देखिए, when information is given to an officer in charge of a police station of the commission within the limits of such station of a non-cognizable offense, he shall enter or cause to be entered the substance of the information in a book to be kept by such officer, so and so, and refer the informant to the magistrate. वो पुलिस ये करेगी कि देखो यार ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, हम आपका इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं हमारे स्टेशन डायरी में, जनरल डायरी में, अब आप मैजिस्ट्रेट के पास जाइए. ओके. Second, subsection 2 says, no police officer shall investigate a non-cognizable case without the order of a magistrate. Magistrate के order जब तक नहीं मिलता, police cannot investigate in a non-cognizable case. तो police को क्या करना होगा? They will have to take permission. They will have to take
permission from the magistrate. How will they do that? This is how they write. ये चीज वो लोग लिखते हैं, ठीक है? In the court of judicial magistrate, so and so request to accord permission to investigate in non-cognizable offense under section 155 clause 2. वही है ना 155 clause 2, ठीक है? देखिए what are they saying? With reference to the above cited, I submit that, मैं थोड़ा dates वगैरह skip कर रहा हूँ. क्या हुआ यहाँ पर? Two unknown persons came to the complainant house on a motorcycle. They proceeded to his wife, abused her in filthy language, and threatened dire consequences to kill. Subsequently, she cried. The persons in the house came there. Upon that, they left their motorcycle and fled away. ये सब हुआ. So the contents of the above petition is attracting the section of law as non-cognizable offense, which is under section 290 and 506 of IPC, जो non-cognizable है. Therefore, it is prayed that the Honorable Court may kindly please accord permission to inquire into the matter under section 155 CRPC and book the respondents in the interest of justice. ये वहाँ के स्टेशन हाउस ऑफिसर who is the SI of Hajipur, he has filed it. Okay, and he is saying that मुझे permission दे तो मैं investigation करूँ. So again, magistrate will simply write allowed or permitted नीचे, and that should be sufficient. ठीक है? तो then now the police can investigate in this case. ठीक है? So I hope you've understood how section 155 works. All right. So far, if there is any doubt, please, I'll just take one or two doubts. Chat में आप please type कर दें. Any doubts so far? FIR clear है topic? Or if it is clear, just give me a yes if you have understood it. Okay. All right. Great. Okay, great. Okay, one or two doubts I'll just take. Thank you so much, everybody. Amazing. You know, okay. Dr. Vanaja has asked me, how do we prove that SP has not responded? The complainant will the person who is filing a private complaint, he will have to state in the affidavit that I first went to the police station, no response. I went to the SP, no response. Hence, I'm coming there. That affidavit itself is sufficient. See, because affidavit basically means that he is swearing on oath that he has done this. And swearing on oath, lying on oath is perjury. So if he is actually not gone to SP, if it is proved later that he has actually not gone to SP, then he can be punished for perjury, right? So that affidavit is sufficient is what Priyanka Srivastava is also saying. Okay. So that. Okay. Priyanka Ramaswamy saying, what if the police fails to register non-cognizable offense in the station diary? Then there's no problem. The person can directly go file a private complaint. Okay, because the police does not anyway have the power to, investigate in non-cognizable offense. So he can directly go and file a complaint at the magistrate. As far as non-cognizable case is concerned, okay? The answer is only for non-cognizable. Okay? Amrita is saying, for how long one has to wait for SP's reply? Generally, in practice, about 2 to 3 days of reply is, wait is also sufficient. It shouldn't be on the immediate day, but at least 1 or 2 days, even 2 to 3 days wait is sufficient. Okay, that should be enough. Okay, there's no such time again given in Priyanka Srivastava, but that should be sufficient. Okay. Yeah. Rishabh is saying, can memo for alteration be challenged by the defense side? No. It is at that point of time, defense is not yet on the record, है ना? अभी सिर्फ prosecution मतलब police investigation ही कर रही है. तो the defense is not yet on the record. तो वो challenge कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे? तो no, it cannot be challenged there. Maybe during the trial, at the end of the trial, arguments जब होंगे, तो maybe the defense wants to show that how unnecessarily section alteration change किया गया था, तो argue as an argument use कर सकते हैं. But
At the stage of alteration, the defense need not be heard. Similarly, at the stage of registering of an FIR also, the defense need not be heard. ऐसा नहीं कि accused की सुनवाई होगी कि देखो तुम्हारे खिलाफ FIR रजिस्टर करें या ना करें बताओ, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है. पुलिस will just simply do it. Alteration भी ऐसा ही होगा, accused की कोई सुनवाई तब नहीं होगी. ओके. यार बहुत सारा डाउट्स हैं, बहुत सिमिलर हैं डाउट्स वैसे. What if under 155(2) magistrate refuses, then what will the complainant do? See, refusal of magistrate to take FIR, that can also revision हो सकता है इसका. So you can go to sessions court for revision, or you can go to the high court directly. Writ jurisdiction can be invoked of the high court, 226 to 27 of constitution article के हिसाब से. ठीक है. मोहम्मद हसन कह रहे हैं कैन पुलिस ऐड अनदर चार्ज व्हाइल फाइलिंग द चार्जशीट? दे कैन, दे डेफिनेटली कैन. ठीक है, मैं चार्जशीट के टॉपिक पे जब आऊंगा मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा उसको. ओके. All right. So far, I hope this thing. I'm sorry, I'm not able to take all your doubts because we're running short on time, and I want to complete at least one more topic. Okay. So FIR, I hope everybody is clear. You've learned a lot. So let's move to one more topic and cover one more topic for the day. Okay. Right. Okay. Now, let's look at arrest. I'm going to the next topic, and that is arrest. Akshay saying, can police investigate the matter and file a charge sheet in different sections instead of seeking alteration? Yes, Akshay, that can be done. I'll come to that in detail when I'm talking about charge sheet as a topic. Okay. Okay. Thank you, Antima. Thank you. Thank you, everybody who's saying that your concepts are getting cleared. It's nice to have positive feedback. Okay, let's start with the next topic. So one topic we've completed, FIR. Okay, let's start with arrest. Okay. Shifa, yes, I will give this PPT to JudiSure. They will put it up on the group and you can get all the PPT. Okay, no issues. You'll get it. Don't worry. ठीक है. तो बट साथ ही आप नोट्स भी बना रहे हो क्योंकि बहुत सारे हमने केस लॉस वगैरह डिस्कस किया है. तो प्लीज आप नोट्स बनाते रहना. केस लॉस इंपॉर्टेंट है, लिखनी होंगी आपको आंसर्स में. सो प्लीज डू दैट. ठीक है. Okay, now we're starting with the next topic and that is arrest. क्योंकि FIR होने के बाद arrest, police will want to find where is the accused. पुलिस accused को ढूंढना चाहेगी और पुलिस उस इंसान को अरेस्ट करना चाहेगी. क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर है और कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही पुलिस FIR रजिस्टर करती है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, तो पुलिस को वारंट की भी जरूरत नहीं है. पुलिस अपने आप जाके अरेस्ट कर दे, वो कर सकते हैं. लेकिन आप ये बताएं, क्या FIR रजिस्टर कर दिया कॉग्निजेबल ऑफेंस में, इज इट नेसेसरी टू अरेस्ट? क्या अरेस्ट करना जरूरी है? नहीं है. ठीक है. इट इज नॉट नेसेसरी टू अरेस्ट. लेट मी गो बैक टू दैट केस. अरनेश कुमार के बारे में हम बहुत सारे लोग लिख रहे हैं. मैं अरनेश कुमार पे आता हूं. आई विल गो to Lalita Kumari also. Even in Lalita Kumari case, they have said that simply because there is an FIR, an arrest is not needed. Okay, let me show you the relevant paragraph of that. You can cite Lalita Kumari and you can cite Arnesh Kumar versus State of Bihar, which is a 2014 case. PC Ghosh, Justice PC Ghosh has given that judgment. Okay. I think, let me just scroll down. ठीक है. देखिए यहाँ पर क्या है, दे हैव ओनली, इसी केस में उन्होंने एक सब हेडिंग बनाया है इस जजमेंट में. इज देयर अ लाइकलीहुड ऑफ मिसयूज ऑफ दिस प्रोविजन? विच प्रोविजन? 154 की बात कर रहे हैं, जहां पर FIR लॉन्च करना, रजिस्टर करना मैंडेटरी है, उसकी बात कर रहे हैं ना. देखिए व्हाट दे आर सेइंग इज, while registration of FIR is mandatory, arrest of the accused immediately on registration of FIR is not at all mandatory. मैं इससे ज्यादा पढ़ूंगा नहीं.
ठीक है, ये एक ही सेंटेंस दिखाने के लिए मैंने आपको अभी जजमेंट की कॉपी निकाली है। ललिता कुमारी वर्सेस यूपी, गवर्नमेंट ऑफ यूपी में, वाइल रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज मैंडेटरी, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर मैंडेटरी तो है, रजिस्ट्रेशन करना होगा, लेकिन अरेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड इमीडिएटली ऑन रजिस्ट्रेशन इज नॉट एट ऑल मैंडेटरी, मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है कि वो अरेस्ट करे। ठीक है, अब इसके चलते लेट अस नाउ लुक एट वन पर्टिकुलर सेक्शन एंड दैट इज सेक्शन 41A। वहां पर हम अरनेश कुमार देखेंगे। ठीक है, सेक्शन 41A and we'll look at Arnesh Kumar after that. What is 41A saying? 41A says the police officer shall, in all cases where the arrest of a person is not required under the provisions of subsection 1 of section 41, issue a notice directing the person against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offense to appear before him or at such other place as may be specified in the notice। मतलब जहां पुलिस अरेस्ट कर सकती है, पुलिस अरेस्ट ना करते हुए पुलिस कैन इशू अ नोटिस। एक इंसान है, वो एक जगह रहता है, उसका घर है, वहां पर उसकी फैमिली है, पुलिस को लगता है कि हाँ कॉग्निजेबल ऑफेंस इसने किया है, इसको हम अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पुलिस उसको अरेस्ट ना करते हुए उसको एक नोटिस इशू कर सकती है कि देखो यार हम तुमको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, बट ये एक नोटिस हम आपको दे रहे हैं, आप ये डेट पे इस जगह पे आ जाइए। कौन सी जगह पुलिस बुलाएगी? पुलिस स्टेशन ही बुलाएगी। तो इस डेट पे इस टाइम पे आप पुलिस स्टेशन आ जाइए, आपसे पूछताछ करनी है। ठीक है, आप ये डेट पे यहां पर आ जाइए, हम आपको अरेस्ट नहीं कर रहे। वो आ जाए तो ठीक है, अगर वो उस डेट पर उस टाइम पर नहीं आता है वो इंसान, तब पुलिस कैन अरेस्ट। लेकिन अगर वो आता है तो पुलिस देन विल नॉट अरेस्ट। ठीक है, क्लॉज 3 में दिया है व्हेन सच पर्सन कंप्लाइज एंड कंटिन्यूज टू कंप्लाई विद द नोटिस, अगर वो नोटिस से कंप्लाई करता है तो ही शैल नॉट बी अरेस्टेड unless for reasons to be recorded the police is of the opinion that he ought to be arrested। अगर पुलिस को लगता है कि he ought to be arrested then he can do that, but reasons to be recorded वो होना चाहिए। इसको जनरल पार्लांस में सेक्शन 41A नोटिस कहते हैं। अरनेश कुमार ने इसको क्या किया, उन्होंने कहा सेक्शन 41, Arnesh Kumar has basically applied this to this particular clause under section 41, which is to say that whenever the offense is punishable by less than 7 years, जब कभी भी 7 साल या उससे कम की सजा कोई ऑफेंस पे हो और वैसे एक ऑफेंस पे एफआईआर रजिस्टर किया गया हो, तब अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इज सेइंग that it is mandatory for the police to issue a notice under section 41A and the police should not arrest। That is what Arnesh Kumar is saying। ठीक है, I hope you've understood this। Let me actually open Arnesh Kumar judgment for you। ठीक है, just give me 1 second, मैं Arnesh Kumar judgment ही opening it। See, I don't have the PDF, so I'm just showing the Indian Khanun version। I didn't download it from SSC online। Okay, this is the thing। Okay, Arnesh Kumar में they have restricted, मतलब they have not restricted, but they have emphasized on section 41 subsection 1 clause B। Okay, which is talking about this। ये देखिए section 41 उन्होंने कोट किया, A को कोट नहीं किया, subsection 1 A को नहीं कोट किया, B को कोट किया। ठीक है, और B में क्या है
कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस हो जिसकी सजा 7 साल हो या 7 साल से कम हो, तब क्या करना चाहिए? द पुलिस विल हैव टू इश्यू नोटिस अंडर सेक्शन 41A। वो आप करें। दिस इज व्हाट ये 41A में नोटिस आप करें। दिस इज व्हाट अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार इज सी। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये नोटिस कैसे होती है। Okay, so let me go back to the PDF. I'll show you how a notice is given. ठीक है, this is how a notice is given. ठीक है, to an accused. Okay, to so and so, ये accused का नाम है. Notice under section 41A of CRPC. It says, in the exercise of powers conferred under 41A subsection 1 of CRPC, I hereby inform you that during the investigation of so and so crime number, FIR number dated so and so under section 337 of IPC registered at this police station, it is revealed that there are reasonable grounds to question you to ascertain facts and circumstances from you in relation to the present investigation. Hence, you are hereby directed to appear before me. Me मतलब ये कौन दे रहे हैं notice? Sub Inspector of Police, SI of Police is giving the notice. So he's saying you are directed to appear before me at 10 AM और PM नहीं, एक को काटना चाहिए था उनको. ऐसा नहीं कि सुबह 10 बजे या रात 10 बजे है. They had to strike off PM. Okay. So 10 a.m. on this particular date, 9th October, so and so, at this police station with proof of identity and residence, and you are directed to comply with all and or whatever the following directions. ये directions से आप comply करेंगे. क्या है directions? You will not commit any offense in future. You will not tamper with the evidences. You will not make threat, inducement, or promise to any person. You will appear before the court as and when required. You will join investigation as and when required. You will disclose all the facts truthfully. You will produce all relevant documents material required. You will not allow any evidence. You will not allow any the destruction of any evidence. कोई evidence का destruction allow नहीं करोगे. And any other conditions. ठीक है. Failure to attend or comply with these terms of notice can render you liable for arrest under subsection 3 and 4 of CRPC of this particular section 41A. अक्यूज को दिया, अक्यूज की सिग्नेचर भी ले ली उस नोटिस पे, एक कॉपी उसको दी जाती है, एक कॉपी पे उसकी सिग्नेचर लेके कोर्ट में सबमिट कर दिया जाता है. ठीक है, दिस इज हाउ नोटिस इज गिवन. ओके, अब ये नोटिस के तहत द पर्सन इज कॉल्ड. लेकिन अगर 7 साल से ज्यादा ऑफेंस में पनिशमेंट 7 साल से ज्यादा अगर हो, लेट्स से 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, 302 मर्डर, उसमें obviously the punishment is more than 7 years. In such cases, a notice under section 41A is not required as per Arnesh Kumar's judgment. Police can directly go and arrest. They can do that. ठीक है? Now, let's go back to the topic of arrest. Okay? देखिए, arrest, what is the purpose? Another important case here is State of Haryana versus Dinesh Kumar. They have said, वैसे अरेस्ट का डेफिनेशन सीआरपीसी में कहीं नहीं दिया गया. द वर्ड अरेस्ट इज नॉट बीन डिफाइंड इन सीआरपीसी एनीवेयर. सो व्हाट इज अरेस्ट? अरेस्ट इज, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस, इट इज द रेस्ट्रेंट और डिप्रिवेशन ऑफ वंस पर्सनल लिबर्टी. एक को आप रेस्ट्रेन कर रहे हैं या उसकी पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव कर रहे हैं, वो अरेस्ट है. और ये अरेस्ट क्यों किया जाता है? These are the reasons. You can make a flow chart, you can make diagrams in your answers. It will enrich your answers. Mains में आप ये सब कर सकते हैं. ठीक है, आप कीजिए. मैंने खुद अपने एग्जाम्स में भी किया था, अपने मेंस में भी किया था. तो अरेस्ट का अगर आप आए तो ऐसे आप कोई डायग्राम्स वगैरह बना सकते हैं. 5 चीजें अगर हो तो स्टार बनाया है, 4 चीजें हो तो ऐसे प्लस का सिंबल, और आपने लिखा और बीच में यू हैव रिटन पर्पस ऑफ अरेस्ट. ऐसे चीजें आप एग्जाम में कर सकते हैं. ठीक है, तो यू कैन डू इट. What is the point of arrest? Prevents further crime. वो फिर से क्राइम और क्राइम नहीं करेगा क्योंकि वो तो he'll be in lockup. Next, it will ensure presence of the accused at trial. वो भाग नहीं जाएगा. He will not abscond. तो during investigation भी वो रह रहा है, during trial भी वो he is available. Safe custody of person. हो सकता है कि अगर एक इंसान ने मर्डर किया तो there can be revenge also against this person. तो जिस इंसान जो accused है उसकी भी सेफ्टी का ख्याल रखा जाएगा अगर अरेस्ट हो. And it will help the police with investigation.
तो पुलिस को भी उस अरेस्ट की वजह से इन्वेस्टिगेशन में हेल्प हो रहा है, उसको भी इंटरोगेट कर सकते हैं, उससे भी सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, खैर ये अलग बात है कि ही डज नॉट हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। ये हम बाद में आएंगे 161 स्टेटमेंट के टाइम पे। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 हम पढ़ेंगे, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। बट if the police wants, they can ask the question. If he wants, he can answer those questions also. That is the point of arrest. The power of arrest without warrant for the police is given under section 41. ठीक है, तो that's this thing, section 41 पीपीटी मिल जाएगी, तो ये सारे आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, विदाउट वारंट इज ऑल्सो गिवन। रिसेंट एक जजमेंट आया था अशफाक आलम वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, इसी साल का है। तो अगेन जो दिल्ली प्रीलिम्स दे रहे हैं तो प्लीज ये जजमेंट पे ध्यान दें, अशफाक आलम वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। इसके अंदर दे हैव सेड दैट अरनेश कुमार गाइडलाइंस, उन्होंने कहा कि कई लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इनफैक्ट हाईकोर्ट, सारे हाईकोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि अपने अपने जुडिशियल ऑफिसर्स को, जजेस को आप अरनेश कुमार की गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए डायरेक्शंस दें। सारे डीजीपीस ऑफ ऑल द स्टेट्स, हर स्टेट के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपीस को इन्फॉर्म किया गया था कि अपने अपने सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर्स को आप अरनेश कुमार के गाइडलाइंस बताएं और कहें कि वो अरनेश कुमार की गाइडलाइंस फॉलो करें, और नोटिस जहां पर भी देना है उनको नोटिस दें, अरेस्ट ना करें। सो अशफाक आलम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान हैज reiterated Arnesh Kumar, and they have put a stress on the guidelines of Arnesh Kumar. Okay, so I hope this is clear. Now, when ये सारे आप अगर मैं जुडिश्योर का कोर्स अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ये सब मैं बहुत डिटेल में पढ़ा था। अरेस्ट एक टॉपिक ही मुझे 1-2 क्लासेस लग जाएंगे, एफआईआर के टॉपिक मुझे 2 क्लासेस लग जाते हैं नॉर्मली पढ़ाने में। Because since I'm obviously revising, there are people from the previous batch also in this session who are doing refreshers course, who have already been taught by me in all of these things. Since I'm only revising for them, I'm dealing with important topics here. Okay, and for that, one important case here is DK Basu versus State of West Bengal, which most of you must have already heard. Rights of arrested person. DK Basu versus State of West Bengal has several guidelines by the Supreme Court as to how an arrest should be done and what are the rights of an arrested person. Most of these have been incorporated by subsequent amendments. 2008, 9, 2012 में जो amendments हुए थे CRPC के, उसमें incorporate किए गए थे. But they have said that जब arrest करते हैं, let's look at these guidelines. That जब arrest करते हैं, police should carry clear identification. Police अपना एक clear identification carry करे so that they are recognized as police officers. They should also prepare a memo of arrest and उस मेमो के हिसाब से वो अरेस्ट करें। एक कोई फ्रेंड या रिलेटिव को बता दें कि देखो इस इंसान को हम अरेस्ट कर रहे हैं और इस इंसान को कहाँ ले जा रहे हैं वो भी बता दें। सारे एंट्री स्टेशन डायरी में दे हैव टू राइट इट डाउन। मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए और मेडिकल एग्जामिनेशन में ऑल द इंजुरीज विल हैव टू बी रिटन and all these the documents of copies of all these documents should have to be given to the magistrate and he should be allowed to meet his lawyer. Okay, he has a right to consult a legal practitioner of his choice. Article 22 of the Constitution also talks about it. Okay, so these are the rights of arrested person that will have to be followed and respected. Okay, now what happens after arrest? Immediately after arrest क्या होता है? The CRPC section 54, section 57 says, let me go to 57, says that the person cannot be detained for more than 24 hours in police custody. Police custody में 24 घंटे से ज़्यादा an arrested person should not be there. So what should be done? This is also given in the Constitution, right? Article 22 again says that a person who is arrested should be produced before the nearest magistrate within 24 hours exclusive of the time of journey. तो 24 घंटे के अंदर अंदर this person has to be produced before the magistrate, alright? And that magistrate will then remand the accused to judicial custody. Please focus on these words. This person, the accused, arrest के बाद police can only keep him
for a maximum of 24 hours. And before that 24-hour period is done, he will have to be produced before a magistrate. Magistrate के सामने ले जाएं, और magistrate will then, now the magistrate has a choice. Magistrate कह सकता है कि यार there is no prima facie case, इसके खिलाफ क्यों अरेस्ट किया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा इसके खिलाफ कोई केस है. तो magistrate can immediately discharge that person, कि नहीं इसको छोड़ दिया जाए. ठीक है. और if the magistrate thinks कि okay there is a prima facie case, the magistrate can send this person to what? To judicial custody. ठीक है. अब आप कहेंगे कि 24 घंटे, तो कोर्ट तो 10 बजे से 5 बजे तक चलता है, तो फिर क्या होगा? ऑब्वियसली अगर 24 घंटे रात को खत्म हो रहे हैं, तो द पर्सन विल बी टेकिंग टू द मैजिस्ट्रेट एट द हाउस ऑफ द मैजिस्ट्रेट इवन इन द नाइट, बिकॉज द 24-hour time limit is very strict. It is a fundamental right of the constitution for of the accused कि 24 घंटे के अंदर अंदर he will have to be produced before the magistrate. And that procedure is also given under section 57. So he will have to be produced before the magistrate within those 24 hours. वो जरूरी होता है. And the magistrate then may remand to judicial custody. ठीक है, मैं आपको एक रिमांड का भी फाइल दिखाऊंगा कि रिमांड कैसे होता है, and what is it that police show. And then hopefully after this topic we will conclude this class. So that is something that will have to be done. Under what section is the remand done? That happens under section 167. CRPC is slightly unorganized that way कि एक साथ, जैसे CPC हैज दैट कन्वीनियंस कि आप ऑर्डर्स पढ़ते जाएं, तो ऑर्डर 1 से लेकर ऑर्डर 21 तक एक तरतीब में ऑर्डर्स हैं, राइट. विल फर्स्ट टॉक अबाउट पार्टीज टू अ सूट, फ्रेम ऑफ द सूट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो एक ऑर्डर है कि प्लीडिंग्स ऑर्डर 6 में है, प्लीडिंग्स में फिर उसका प्लेंट 7 में है, 8 रिटन स्टेटमेंट, तो एक अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज इन 9. देयर इज एन ऑर्डर. वो ऑर्डर सीआरपीसी में हमको नहीं नजर आता. आप देखें एफआईआर हो रहा है 154 में, अरेस्ट हो रहा है 41 में, अरेस्ट के बाद रिमांड होगा 167 में, बेल चाहिए तो 437 में. तो कोई ऑर्डर जो है नहीं दिखाई दे रहा. लेकिन आपको तैयारी आप क्यों कर रहे हैं, तो आप अपना ऑर्डर बना लीजिए. ये सारा प्रोसीजर आप ध्यान में रखिए. ठीक है. सेक्शन 167 से जब 24 घंटे के अंदर अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो रहा, तो क्या करें? Whenever any person is arrested and detained in custody, and it appears that the investigation cannot be completed within the period of 24 hours fixed by section 57, and there are grounds for believing that the accusation or information is well founded, तब क्या होगा? The officer in charge of the police station will do what? Shall forthwith, immediately, transmit to the nearest judicial magistrate a copy of the entries in the diary hereinafter prescribed relating to the case, and shall at the same time forward the accused to such magistrate. मैजिस्ट्रेट को उस केस के सारे जो भी उन्होंने जनरल डायरी में एंट्रीज बनाए थे उसके कॉपीज और उस अक्यूज्ड को मैजिस्ट्रेट के सामने फॉरवर्ड कर दिया. ठीक है, ये वो करें. नाउ व्हाट विल द मैजिस्ट्रेट डू? द मैजिस्ट्रेट टू whom an accused is forwarded under this section may शल नहीं. देखिए यहां पर आप शल और मे का थोड़ा सा ध्यान रखिए. पुलिस को बोल रहे हैं शल एट द सेम टाइम फॉरवर्ड द अक्यूज्ड. पुलिस ये नहीं कह सकता कि 24 घंटे हो गए तो क्या, पुलिस लॉकअप में ही हम इसको रखेंगे. नहीं, ही शल फॉरवर्ड द अक्यूज्ड टू द मैजिस्ट्रेट. अब मैजिस्ट्रेट के लिए हम यूज कर रहे हैं मे. तो मैजिस्ट्रेट मे और मे नॉट डू व्हाट? सी, द मैजिस्ट्रेट टू whom an accused person is forwarded under this section may, whether he has or has not jurisdiction to try the case from time to time, authorize the detention of the accused in such custody as the magistrate thinks fit for a term not exceeding 15 days in the whole. वो कस्टडी में भेज सकता है, मैजिस्ट्रेट एक कस्टडी में भेज सकते हैं. कितने टाइम के लिए? फॉर अ मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ 15 डेज. ज्यादा से ज्यादा 15 दिन तक वो भेज सकते हैं. क्यों? 15 दिन के बाद क्या होगा? क्या एक्यूज को हम छोड़ देंगे 15 दिन के बाद? नहीं.
15 दिन के बाद वो अक्यूज्ड को जेल से वापस मैजिस्ट्रेट के सामने लाएंगे। तब मैजिस्ट्रेट कैन देन एक्सटेंड द जुडिशियल कस्टडी, एक्सटेंड रिमांड फॉर अनदर 15 डेज, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 15 डेज। तो एक बार मैजिस्ट्रेट ज्यादा से ज्यादा 15 दिन तक जुडिशियल कस्टडी ऑर्डर कर सकते हैं। उस 15 दिन के बाद जेल से अक्यूज को फिर मैजिस्ट्रेट के सामने लाया जाएगा, और मैजिस्ट्रेट चाहे तो फिर से 15 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी कर सकते हैं। अब इसकी लिमिट नहीं है, वो 15-15 दिन कितना भी कर ले, सालों चले, कोई बात नहीं, बट मैक्सिमम टाइम एट वन दिस थिंग इज 15 days. Okay, hope that's clear. What is the remand and how does that work? Okay, so we'll look at the remand document also. I'll just show you how that works. This is a sample document of remand. देखिए, application of remand of accused person beyond 24 hours. There's a name of a complainant, date and time of report is given, crime number is given here. The person who is arrested, the accused, his details are given here. Date and time of arrest, ठीक है, ये टाइम था। Remand of remand required, वो 15 दिन मांग रहे हैं, लेकिन it's up to the obviously the magistrate whether to give this or not. Separate remand case diary is being attached here. Okay. Now, see remand case diary. Offense क्या है? 379. मतलब what is it? What is the offense under 379 of IPC? I hope you know. Punishment है उसमें, किसका punishment है 379 में? ऐसा कह रहे हैं चोरी, ठीक, चोरी का ये थेफ्ट। ओके, थेफ्ट का है, राइट राइट। डेफिनेशन है 378 में, पनिशमेंट है 379 में, एग्रीवेटेड 380 में होता है, ठीक है, थेफ्ट अलोंग विद हाउस ब्रेकिंग। ओके, तो 379 ही हैज कमिटेड सम थेफ्ट। ओके, नेम ऑफ द कंप्लेनेंट दिया है, अक्यूज का नाम दिया है, प्रॉपर्टी लॉस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेम ऑफ द विटनेसेस एग्जामिन, मतलब जिन जिनके 161 स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं वो सारे डिटेल्स यहाँ पर दिए गए हैं। व्हाट इज 161 स्टेटमेंट मैं कल आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे होते हैं 161 स्टेटमेंट। अब ये कह रहे हैं ऑनर सर, दिस इज अ थेफ्ट ऑफ 2 मोबाइल फोन्स, 2 मोबाइल फोन चोरी इसने किए हैं। कहाँ पर? कोई मोटरसाइकिल है, उसकी डिक्की या उसकी प्लास्टिक बॉक्स तोड़ के इसने चोरी की है, ठीक है, चलो अच्छा काम किया इसने। इसके बाद ये सब हुआ तो वो बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन हम ये सब पता चला, तो इसको देखिए, रीजंस फॉर द रिमांड ऑफ द अक्यूज्ड, क्यों हम चाह रहे हैं कि ये इंसान को जुडिशियल रिमांड में भेजा जाए, व्हाट आर द रीजंस? इफ ही इज नॉट अरेस्टेड, he may not change his attitude and commit similar offenses as the accused is a habitual offender involved in crime number so and so so and so so and so। देखिए, 5 क्राइम नंबर्स, 6, मतलब 6 और केसेस इस इंसान पे हैं, तो ही इज एन हैबिचुअल ऑफेंडर। तो अगर इसको हम अरेस्ट नहीं करेंगे तो ये और करता रहेगा, ही माइट कमिट फर्दर ऑफेंसेस। नेक्स्ट, टू अटेंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान वी वांट हिम, तो ठीक है। देन ही मे थ्रेटन द विटनेसेस and he may tamper the evidence, then he may induce anybody to not disclose the facts of the case। ये सब हो सकता है, इसीलिए इसको अरेस्ट किया जाए, इसको रिमांड में भेजा जाए, ठीक है। अब इन्होंने सब कुछ करके लास्ट में दे आर सेइंग देयरफॉर द अरेस्टेड अक्यूज्ड सो एंड सो पर्सन इज हियर विथ being produced before the honorable court along with the escort। मतलब वो किसके साथ भेज रहे हैं? HC is head constable and PC is police constable, so and so number, with a prayer to remand the accused to judicial custody for a period of 15 days to enable the investigation agency to complete the investigation। ये ऐसे वो it is given। okay, ये नोटिस है अंडर सेक्शन 50। ये किसको देते हैं सेक्शन 50 को नोटिस? इट इज गिवन टू the family or friend। it is first given to the accused and then section um, it is also given to the family or friend of that particular person, ठीक है। और क्या क्या किया इन्होंने, देखिए चेकलिस्ट है, इन्होंने चेकलिस्ट में लिखा है कि क्यों अरेस्ट करना जरूरी है। ओके, सो सेम चीजें वहां पर जो दिए थे वहां पर है। अब आजकल कोविड टेस्ट इज नेसेसरी, तो उसका कोविड टेस्ट किया तो नेगेटिव आया, ये होता है। ये उसके साथ साथ मेडिकल टेस्ट भी होगा, ठीक है। तो दिस इज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसका मेडिकल टेस्ट भी हुआ था, तो नाम वगैरह उसका, टेम्परेचर एंड बीपी एंड अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स, कोई और चीज नहीं है, इज फिजिकली फिट
मेंटली फिट, तो वो हो गया. नाउ द मैजिस्ट्रेट विल गिव अ रिमांड ऑर्डर. व्हाट इज द रिमांड ऑर्डर? ये ऐसे होता है, ठीक है. दिस इज वन रिमांड ऑर्डर लुक्स लाइक. ओके, सी, ये मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर है, ठीक है. The accused has been produced before me today at so and so at 4 p.m. in the court. On inquiry, the accused stated that he has received the copies of the remand report along with its enclosures. The accused stated that he has been informed the grounds of arrest and that his family members have been informed that he is arrested. The accused has also stated that he has not been ill-treated by the police. ये सब accused को पूछते हैं मैजिस्ट्रेट कि बताओ पहले कि कब अरेस्ट किया गया था तुम्हें. वो कहेगा कि आज सुबह, चलो कोई बात नहीं क्योंकि 24 घंटे नहीं हुए. वो अगर कहे कि यार पिछले हफ्ते अरेस्ट किया गया था, तब तो 24 घंटे से ज्यादा हो गए ना. तो देन सम एक्शन विल हैव टू बी टेकन अगेंस्ट द पुलिस. तो एसपी को लेटर लिखा जा सकता है कि डिसिप्लिनरी एक्शन ले अगेंस्ट दिस पुलिस ऑफिसर बिकॉज ही हैज केप्ट अ पर्सन अंडर हिज कस्टडी फॉर मोर देन 24 आवर्स. ये हो सकता है. तो चलिए, वो कहेगा कि सुबह में अरेस्ट किया गया था, ठीक है, 24 घंटे हो गए. देन उसको पूछते हैं कि क्यों अरेस्ट किया, तुमको पता है, डू यू नो, कि क्या किस वजह से अरेस्ट किया गया था, व्हाट इज द केस, डू यू नो. तो वो कह देगा कि दिस इज द रीजन. ठीक है, ओके, अगर नहीं है तो बता दें उसको. देन तुम्हारे घर वालों को या कोई या तुम्हारे दोस्त वगैरह को पता है कि तुमको अरेस्ट किया कर दिया गया था. हाँ पता है, ठीक है. क्या तुमको पुलिस ने मारा है, डिड द पुलिस हिट यू, बीट यू और एनीथिंग, इल ट्रीटमेंट कुछ हुआ है. वो अगर कहें हाँ, तो फिर से और एक लेटर लिखना पड़ेगा एसपी को या डीसीपी को, सेइंग दैट देखो दिस पुलिस ऑफिसर हैज बीटन द अक्यूज्ड. अच्छा, तो फिर उसको पूछा जाएगा कि यार तुम्हारे पास एक एडवोकेट है, डू यू हैव एन एडवोकेट टू रिप्रेजेंट यू, एक लॉयर है आपके पास. अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो, अगर नहीं है तो क्या, लीगल एड काउंसिल कोर्ट विल हैव टू अपॉइंट. कोर्ट जो है एक लीगल एड काउंसिल, एक लॉयर को अपॉइंट करेंगे अपनी तरफ से. उस लीगल एड को काउंसिल को नालसा एक्ट के चलते हुए, मतलब नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत उसको फीस गवर्नमेंट देती है. उनको हम लीगल एड काउंसिल कहते हैं. वो कोर्ट जो है उनको अपॉइंट करती है. मेडिकल एग्जामिनेशन, तो ये सारी चीजें वेरीफाई करनी है. तो द अक्यूज्ड स्टेटेड ही हैज नॉट बीन इल ट्रीटेड. द अक्यूज्ड आल्सो स्टेटेड दैट ही हैज मींस टू एंगेज एन एडवोकेट and he does not require any legal aid counsel, and further medical examination of the accused has been done. Provisions of so and so CRPC have been complied with. On perusal of the record and its enclosures, there appears a prima facie case against the accused for the offence under section 379 of IPC. Hence, the accused is remanded to judicial custody for a period of 14 days. Okay, so this is how the magistrate signs. Okay, ये रिमांड हो गया. 15 डेज नहीं, 14 डेज. आप हो सकता है पूछें कि 15 डेज कर सकते थे ना, 14 डेज क्यों नहीं, क्योंकि 14 डेज करने पे क्या होगा कि सेम डे ऑफ द वीक ही विल बी प्रोड्यूस्ड. अगर मैं सैटरडे को रिमांड कर दूं 15 दिन के लिए, तो नेक्स्ट डेट रिमांड उसका कब खत्म हो रहा है. सोचें कि सैटरडे को अगर मैं रिमांड कर दूं तो 15 दिन के लिए, तो नेक्स्ट डेट डे कब आएगा जब उसका रिमांड खत्म हो रहा है, वो संडे आएगा, है ना. क्योंकि अगले सैटरडे तक 7 दिन, उसके अगले सैटरडे तक 14 दिन, संडे उसके अगले वाला संडे जो होगा वो 15 दिन, तो 15 दिन होंगी. अब संडे को वो घर ले आएंगे फिर से कि रिमांड खत्म हो गया, रिमांड करें. तो नॉर्मली क्योंकि ये मामला कोर्ट में ही हो, तो ये किया जाता है कि 14 दिन दिया जाता है, ताकि जनरली प्रैक्टिस है, चाहे एक दिन भी दे, 2 दिन, 15 दिन भी दे, मैजिस्ट्रेट की मर्जी है, बट जनरली प्रैक्टिस 14 दिन दिया जाता है. क्योंकि अगर सैटरडे रिमांड हो रहा है तो फिर अगले सैटरडे 7 दिन, उसके अगले सैटरडे 14 दिन, उस दिन प्रोड्यूस. ठीक है. अगर 14 दिन रिमांड करें तो संडे आ रहा है, मान लीजिए मैं संडे अगर मैं रिमांड करता हूँ 14 डेज के लिए, तो फिर नेक्स्ट रिमांड खत्म होगा संडे को ही. अगर मैं संडे रिमांड कर रहा हूँ 14 दिन के लिए, तो रिमांड खत्म होगा संडे को ही. तब मैं मे बी आई विल रिमांड फॉर 15 डेज, ताकि वो मंडे आ जाए, ताकि वो कोर्ट में प्रोड्यूस हो. ये सब मैजिस्ट्रेट कन्वीनियंस की बात होती है. जितना जरूरत है उतना वो रिमांड कर सकते हैं. उससे पहले हो भी सकता है कि बेल लेके ये बेल पे निकल भी जाए. ठीक है. सो दिस इज हाउ रिमांड वर्क्स. ओके, एंड दिस इज रिमांड टू जुडिशियल कस्टडी. ठीक है. ओके, एक दो डाउट्स हैं. शुभम कुमार भी पूछ रहे हैं व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन अरेस्ट एंड रिमांड, में बताता हूँ. एंड ओके, पुलिस कस्टडी का भी पूछ रहे हैं, और रिमांड एंड पुलिस जुडिशियल कस्टडी क्या ये सेम है. देखिए,
रिमांड जो है वर्ड वो 167 में नहीं यूज किया गया। सेक्शन 167 में आप देखें तो रिमांड वर्ड इज नॉट यूज्ड। द फ्रेज दैट दे हैव यूज्ड इज ऑथराइज द डिटेंशन। ठीक है, ऑथराइज द डिटेंशन इज द फ्रेज दैट वी हैव यूज्ड। रिमांड एक्चुअली 309 में यूज किया गया था, बट दैट इज फॉर अ सेशंस ट्रायल, तो हम अब वहां पर नहीं जा रहे। ठीक है, अब अरेस्ट क्या होता है? अरेस्ट इज व्हेन द पुलिस टेक्स अ पर्टिकुलर पर्सन फॉर्मली इनटू द कस्टडी। अब आप पूछेंगे कस्टडी क्या है और अरेस्ट क्या है? देखिए, कस्टडी इज अ वाइडर टर्म, अरेस्ट इज अ नैरोअर टर्म। अरेस्ट इज व्हेन द पुलिस इज फॉलोइंग द एंटायर प्रोसीजर एंड अरेस्टिंग अ पर्सन, वो अरेस्ट होता है। और अरेस्ट उसी के लिए होता है जब अ पर्सन हैज टू बी टेकन अंडर अरेस्ट, अंडर कस्टडी, बिकॉज ही इज अक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम। उसको हम जनरली अरेस्ट कहते हैं। ठीक है, कस्टडी वी विल नॉट इज ऑल्सो दैट, बट कस्टडी कोई और जगह पे भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक 10 साल का लड़का किडनैप हो गया, ट्रैफिकिंग हो गई, और पुलिस ने जाके उसको रेस्क्यू कर लिया, तो पुलिस उस 10 साल के बच्चे को अपनी कस्टडी में ले लेती है। क्या पुलिस उसको अरेस्ट कर रही है? नहीं, पुलिस उसको कस्टडी में ले रही है। क्यों? ताकि वो उस बच्चे को सेफ जगह पहुंचाया जाए, अपने पेरेंट्स या गार्डियन के पास उसको पहुंचाया जाए। ठीक है, तो अरेस्ट इज अ वाइडर टर्म and it can be for multiple reasons. Sorry, custody is a wider term. I repeat, custody is a wider term and it can be for multiple reasons. Whereas arrest specifically is a narrower term, which is mainly if that particular person has committed an offense or there is a suspicion that he has committed an offense. There is an accusation that he has committed offense. उसको अगर arrest कर रहे हैं तो that will be called an arrest. ठीक है? I hope that's fine. Uh, all right. Now, डिटेंशन, ऑथराइज टू डिटेंशन इज द वर्ड हियर, रिमांड। ठीक है, अब देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है जुडिशियल कस्टडी और दूसरा होता है पुलिस कस्टडी। देखिए, जुडिशियल कस्टडी एंड पुलिस कस्टडी, अगर एक अक्यूज्ड को हम जेल भेजते हैं, दैट इज जनरली जुडिशियल कस्टडी। ठीक है, इफ अ अक्यूज्ड is taken under judicial custody, he is sent to a jail. Now that jail will only listen to the orders of the magistrate. अब आप प्लीज यहां पर डिस्टिंक्शन ड्रॉ करें, जेल और जेल की पुलिस और सिविल लॉ एंड ऑर्डर की पुलिस, ये दो अलग होते हैं। ठीक है, जेल की पुलिस अलग होती है और लॉ एंड ऑर्डर की पुलिस अलग होती है। जो आप थानों पर जो पुलिस देखते हैं उसको हम सिविल पुलिस कहते हैं या लॉ एंड ऑर्डर पुलिस कहते हैं। जेल की जो पुलिस होती है वो अलग होती है, ये आपस में एक दूसरे के नहीं सुनते। ठीक है, जेल की पुलिस सिर्फ और सिर्फ कोर्ट की सुनती है। तो अगर कोई इंसान को रिमांड कर दिया जाता है तो उसको जेल ले जाया जाता है, जेल में रिमांड ऑर्डर दिखा के बताते हैं कि देखो मैजिस्ट्रेट ने ये रिमांड ऑर्डर दिया है ऑफ जुडिशियल कस्टडी। तो जेल पुलिस कहती है अच्छा ठीक है, मैजिस्ट्रेट ने कहा है तो हम इसको कस्टडी में ले लेते हैं और जेल में रख देंगे। जैसे रिमांड का टाइम खत्म हो जाएगा, वही जेल की पुलिस मैजिस्ट्रेट के सामने उस अक्यूज को ले आकर ठहरा कर देती है कि देखिए, रिमांड आपने 15 दिन के लिए बोला था, तो 15 दिन खत्म हो गया, अब आप इसका क्या करना है बताइए, ये अक्यूज आपके सामने है। और मैजिस्ट्रेट कहे चलिए और 15 दिन के लिए रिमांड एक्सटेंड कर देते हैं, तो द जेल पुलिस विल अगेन टेक दिस पर्सन एंड पुट हिम इन द जेल। ओके, इसको हम कहेंगे जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी का मतलब ये नहीं कि कोर्ट में रखा है या मैजिस्ट्रेट ने अपने घर में एक कमरा बना के रखा है और उसमें कोई रख रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जुडिशियल कस्टडी इज व्हेन द मैजिस्ट्रेट सेंड्स दिस पर्सन टू अ जेल। वहां पर वो जुडिशियल, हम जुडिशियल कस्टडी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि it is on the order of the magistrate and he is practically, not practically, but on paper he is under the custody of a judge। तो वो जुडिशियल कस्टडी है। एंड द लॉ एंड ऑर्डर पुलिस, सिविलियन पुलिस, जो थाने में जो पुलिस रहती है, दैट पुलिस कैन नॉट कॉन्टैक्ट दिस पर्सन एनी मोर बिकॉज ही इज अंडर जुडिशियल कस्टडी। ओके,
Police custody is when the custody is being given to the law and order civilian police. जो एफआईआर कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है, जो ये पुलिस है ना, इसके पुलिस इनके अगर कस्टडी में हम एक इंसान को देते हैं तो दैट इज कॉल्ड पुलिस कस्टडी. ठीक है. But the thing is, there's a limit. Supreme Court is actually looking into it. Okay, recently there was a case. Senthil Balaji is the name of the case, if I'm not wrong. JudiSure Instagram pe bhi, I think there was a post on this, which stated what is the time limit. But सेक्शन 167 में ये दिया गया है कि पुलिस कस्टडी शुड नॉट एक्सीड बियॉन्ड 15 डेज. ये प्रोवाइजो एक पढ़ें. ठीक है, देखें. प्रोवाइडेड दैट द मैजिस्ट्रेट में ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द अक्यूज पर्सन अदरवाइज देन इन द कस्टडी ऑफ पुलिस बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 15 डेज. पुलिस कस्टडी में 15 दिन तक कस्टडी हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं. अदरवाइज or than police custody of police, detention can be for beyond 15 days. So maximum limit for police custody is only 15 days. As of now, the position of law is that it is the first 15 days of arrest, but the Supreme Court has said that this has to be revisited. They have referred it to larger bench in Senthil Balaji case, जिसके अंदर they have said कि is it the first 15 days of arrest or is it 15 days on the whole? Okay, so we will find out whenever that judgment comes. As of now, the position is कि पहले 15 दिन, अरेस्ट आज हुआ तो आज से लेके 15 दिन के अंदर अंदर अगर मैजिस्ट्रेट चाहे तो एक अक्यूज्ड को पुलिस कस्टडी में भेज सकता है. वो एक इंसान को भेजे, सॉरी, वो एक दिन के लिए भेजे, या वो एक हफ्ते के लिए भेजे, 15 दिन के लिए भेजे. 15 दिन से ज्यादा इट के नॉट बी डन. ठीक है, 15 दिन से ज्यादा नहीं होगा. ओके, ये सेंथिल बालाजी में सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेटेड. ठीक है, मैं आप सबको चैट बॉक्स में आई एम जस्ट राइटिंग दैट जजमेंट. ओके, ठीक है, दिस इज द जजमेंट. सेंट्रल बालाजी वर्सेस डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट 2023 का ही जजमेंट है. द पोजीशन एज ऑफ नाउ इज दैट फर्स्ट 15 डेज में ही पुलिस कस्टडी हो सकती है. मे बी इफ द सुप्रीम कोर्ट चेंजेस वी विल फाइंड आउट. उसके अलावा पहले 15 दिन के बाद देयर कैन ओनली बी जुडिशियल कस्टडी. उससे ज्यादा पुलिस कस्टडी नहीं हो सकती. ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक ऑफ अरेस्ट एंड हाउ रिमांड वर्क्स. ठीक है. आर देयर एनी डाउट्स नाउ? प्लीज आस्क. कोई डाउट्स हैं? बताइए. ओके. अच्छा, आई थिंक जेल पुलिस और सिविलियन पुलिस हु आर कॉम्पिटेंट टू टेक कस्टडी. सिविलियन पुलिस विल अरेस्ट. ठीक है, सिविलियन पुलिस विल अरेस्ट. अरेस्ट का पावर सिविलियन पुलिस के पास ही होता है. फाल्गुनी कह रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिमांड. रिमांड इज व्हेन द मैजिस्ट्रेट इज सेंडिंग एन अक्यूज्ड टू जुडिशियल कस्टडी. तो हम कहेंगे द मैजिस्ट्रेट हैज रिमांडेड द अक्यूज्ड टू जुडिशियल कस्टडी. ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ रिमांड. कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटेस्ट पिटीशन ये मैं कल बताऊंगा शिवानी आपको. देखिए, कल 7 बजे हम स्टार्ट करेंगे क्लास, तो मैं आपको इन्वेस्टिगेशन के कुछ टॉपिक्स और फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, उसमें प्रोटेस्ट पिटीशन, वो मैं कल बताऊंगा आपको. मेरे पास है प्रोटेस्ट पिटीशन की भी कॉपी विच आई कैन शो. ऐसे पूछें व्हाट इज मोर डेंजरस, पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी? यार, डेंजर तो कोई भी नहीं होना चाहिए कायदे के हिसाब से. तो बोथ शुड बी सेफ. बट डर होता है कि पुलिस कस्टडी में ही, क्योंकि सिविलियन पुलिस अगर स्कोप हो कोई टॉर्चर वगैरह का, जुडिशियल कस्टडी इज मच सेफर दैट वे. बट नहीं, ऐसे तो नहीं होना चाहिए. ठीक है. ललिता is saying I want to study whole CRPC by you. You will have to join the course uh, that is starting from 4th of December. Okay. Those course details you will find on um, Instagram. Right. Okay. All right. Anything else? Lots of doubts, but थोड़ा सा repeat हो गया है. तो anything else? पुलिस कस्टडी इज अ लॉकअप बट वेयर इज अक्यूज टेकिंग जुडिशियल कस्टडी. आदित्य, मैंने एक्सप्लेन कर दिया ना, जुडिशियल कस्टडी में अक्यूज को जेल ले जाते हैं.
पुलिस कस्टडी में अक्यूज्ड को पुलिस स्टेशन थाने में जो लॉकअप होता है उसी में रखते हैं। तो जेल अगर ले जा रहे हैं तो जुडिशियल कस्टडी में जेल ले जाते हैं। ठीक है। इज द जुडिशियल कस्टडी और रिमांड फॉर अनलिमिटेड पीरियड? अनलिमिटेड पीरियड नहीं होता। इट इज फॉर 15 days ईच टाइम, मैक्सिमम 15 days ईच टाइम। ठीक है। आंचल कह रहे कैन वी गेट रिकॉर्डिंग ऑफ योर अपकमिंग क्लासेस? आई डोंट थिंक सो। ओके, यू विल हैव टू अटेंड प्लीज, you know, live sessions. You will get the recordings of the course, actual course, but इसके भी recording दिए जाएं, I don't know if JudiSure people would want to do that. Okay, so please attend the class tomorrow. Tomorrow's class will be by me. Day after tomorrow, I think Kushal Garg, who is my junior from Nalsar, he will take a class on important concepts of NI Act. Sunday, Professor Faizan Mustafa sir is going to take a class during the day at 11 a.m. Okay, he has time at 11 a.m. So it'll be a class, on Sunday. मैं Sunday की बात कर रहा हूँ. Sunday the class will be on 11 a.m. where Faizan sir will discuss some concepts of constitution, but he also wants to discuss the new bills, the three new bills, uh, to replace IPC evidence and CRPC. He wants to discuss that because Sir has made a presentation very recently before Parliamentary Standing Committee. So he wants to discuss those bills, the differences between the present law and the new laws, etc., and also some concepts of constitution. That will be on Sunday at 11 a.m. Okay, the link is the same, everyone. Okay, for every class the link is the same. Please फिर से link मत मांगना कल कि link फिर से दे दीजिए. हर class के लिए यही link. Gopeshwari, please. Yeah, you can join the course. Go to judicial.com and join, or contact someone on Instagram, whatever. Okay, they'll handle that. Okay, ठीक है. तो ऑल एवरीबडी यूज सेइंग मैं क्लास ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, आप वेबसाइट पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं judicial.com पे. Okay, yeah, if you have any more queries, then the number is given there. You can call that number, WhatsApp that number, और Insta पे भी आप कर सकते हैं. फुरखान पूछ रहे हैं जुडिशियल कस्टडी कैन मल्टीपल लोगों के लिए एक साथ जुडिशियल कस्टडी बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं? 10 अक्यूज हैं तो 10 लोग खड़े हो जाते हैं मजिस्ट्रेट के सामने और सबको एक साथ भेजा जा रहा है, बिल्कुल हो सकता है. कैन दी काउंसिल ऑफ द अक्यूज पर्सन अलाउड टू मीट हिज क्लाइंट? यस, डेफिनेटली. वो तो राइट है उसका. नंदिनी सतपति वर्सेस पीएल दनी में उन्होंने कहा कि द अक्यूज्ड हैज अ राइट टू मीट हिज एडवोकेट. ओके. Shriram saying I'm studying CRPC for the first time. It is very interesting. Okay, great. That's nice. In actual classes, right, in the course, I'm little slow. Okay. अभी क्या है कि I have been just given 2 classes to do CRPC. मैं कितना करके पढ़ाऊँ? तो मेरा ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा सब्सटेंस पढ़ाऊँ, बहुत सब्सटेंस पढ़ाऊँ. वरना मैं इतना I'm very slow. I allow people to unmute. We crack a lot of jokes, and it's slightly more entertaining and interesting than this. But right now I'm very being thoda academic. Okay. Thank you, everybody. Thanks for all the uh, shouting at me. Me and my 2 friends want to join. Yeah, you can join. Please go to the website and join the course. Um, you'll get more details about the course there. You'll get more details about the course on Instagram, where Professor Faizan Mustafa himself made a 8-minute video about this. Okay, about the course. You can do that. Abru is saying this is the best CPC class I've ever attended. Okay, I'm so glad. Thank you so much. Um, Thank you, Roshanara. Okay. Abru, I think you've already joined the course, right? आपसे बात हुई थी मेरी. रोशन आपसे भी बात हुई थी मेरी, है ना? तो looking forward यार. मैं I'll I need like 30 hours to teach पूरा CPC. ऐसे 4 घंटे में क्या कर पाऊंगा मैं? But I'm still trying. Okay. Mm, yeah, great. ठीक है. If you have any doubts, you can. अभी मैं बोलूंगा कि मेरे नंबर पे करें तो बहुत सारे आ जाएंगे. If you've enrolled in the course, you will get my personal number, so you can then, directly message me on WhatsApp if there are any doubts. Manas saying if 6 months enough, yes, it is enough. We have done that 3 times before. It should be enough. Okay. All right. चलिए ठीक है. I think I'm sorry. I will not be able to take any more doubts. Uh, you know, uh,
yes, it will cover minor acts and GS also. ठीक है. शाब आलम. ओके 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 स्पैम कर रहे हैं रिकॉर्डेड यूट्यूब लेक्चर. वो जुडिश्योर को पता है, आप उनसे कांटेक्ट करें, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए. आई डोंट थिंक दे अपलोड द लेक्चर, अगर करेंगे तो पता नहीं. लेकिन प्लीज आप कल मेरी क्लास अटेंड कर लीजिए. ठीक है. बाकी द नेक्स्ट बैच स्टार्टिंग ऑन 4th of December. Okay, Anish, I will not be taking all the subjects. I'll be taking CPC, CRPC, evidence. Okay, 3 subjects and probably contracts also. This is my syllabus. Okay. We in the course we have Pragya Singh, who is my senior from Nalsa. She is a civil judge and judicial magistrate from UP Judiciary. She's 2018 batch UP Judiciary. वो CPC पढ़ाएंगे. Hopefully Monday, Tuesday उनके classes होंगी. ठीक है. तो there are other judges also who will come and take these things. Okay. Tomorrow 7 p.m. I will see you again for my second class where we will do more topics of CRPC. Now we will actually look at charge sheet and final report, and we will also look at the trial procedure. Okay, so I'll see you tomorrow. All right. I hope this class was good. It was learning experience. Okay, I will see you all tomorrow. Okay, thank you so much. Thank you, Antima Chaudhary. Thank you for a very sweet message. Okay, thanks a lot. All right. So I'll see you tomorrow. Okay, bye bye. Take care.